A very good evening to all of you. We are live. If you can see me, if you can hear me, please type yes and we will begin. Yes. Fair enough. So before starting this webinar, I need your complete undivided attention. There wouldn't be no distraction from any social media website. Keep your pen and paper handy. If you have any query, do ask me after the webinar. And the people who would be listening and watching this webinar in recorded format, I request all of you to complete in one go. Fair enough. Lots of people who have enrolled in this course today, day before yesterday, Sunday, Monday, Tuesday, आप लोगों ने जब भी अपने कोर्स ज्वाइन किया होगा, you must have received the complete course access. शाम को 5:30-6 बजे तक जिन लोगों ने एनरोलमेंट किया उनको कोर्स का एक्सेस मिल गया होगा. द पीपल हु हैव एनरोल्ड आफ्टर 6:30 यू विल गेट द कंप्लीट एक्सेस बाय मंडे आफ्टरनून. ओके, ग्रेट. जो लोग आज पहली बार कोर्स में फर्स्ट लाइव क्लास में ले रहे हैं, राइट, एवरी सैटरडे वी टेक लाइव क्लास. इन दैट क्लास वी डिस्कस वन वोकैबुलरी व्हिच वाज गिवन इन द प्रीवियस सेशन. आज जो हम लोग एक वोकैबुलरी का डिस्कशन करेंगे जो प्रीवियस सेशन में दी गई थी उस पर डिस्कशन होगा. एवरी वीकेंड वी गिव वन वोकैबुलरी एंड वी विल डिस्कस. सो नो नीड टू गेट ओवरवेल्म्ड कि एकदम से क्या क्या चीजें हो रही हैं. इन टुडेज वेबिनार वी वोंट बी डिस्कसिंग अबाउट द स्पोकन इंग्लिश कम्युनिकेशन स्किल्स वाले पार्ट पे डिस्कशन नहीं होगा. द एंटायर वेबिनार इज बेस्ड अपॉन योर इंटरव्यू स्किल्स. After the webinar, if you have any query regarding your spoken English communication skills, public speaking, you could ask me. Okay, तो आज के जो webinar का agenda है, that would be related to how to answer tough interview questions. I would be taking 3 or 4 questions. That would be a complete series. Series A है, जो next session होगा, that would also be related to interview sessions. So please don't miss it, ताकि live class में आप लोग maximum से maximum अपनी queries पूछ सको इसमें. Okay, so let me open the vocabulary of the day. What was the word we are to discuss today? Please throw me the word. People already typed. I didn't see. Having an unemotional and stolidly calm disposition. Synonym are tranquil, serene, equanimous, placid. Okay, good. Calm, composed, good. Moderate. Moderate पे आप जा सकते हो, लेकिन the better word is calm. ठीक है. मॉडरेट पे थोड़ी चीजें अलग हो जाती है क्योंकि मॉडरेट इज रिलेटेड टू जहां पे आपकी पर्सनैलिटी वाला पार्ट आ जाता है. तो इट्स बेटर कि आप काम पे चले जाओ, कंपोज पे चले जाओ. बट इफ यू फाइंड एनी ऑप्शन मॉडरेट, इफ यू आर राइटिंग एनी कॉम्पिटिशन जहां पे आपको एक ऐसा वर्ड मिलता है जहां पे मॉडरेट भी आता है और इसके अलावा कोई और सिनोनिम मैच नहीं करता, इन दैट केस वी वोंट हैव एनी ऑप्शन. मॉडरेट को भी आप टिक कर सकते हो, बट इट इज नॉट मोस्ट एप्रोप्रिएट. एमएसडी हैज ऑलवेज बीन undulated for phlegmatic nature in crunch situation. Good, that's why he is called Captain Cool. His phlegmatic approach to handle any pressure situation made flabbergast many. Flabbergast नहीं होगा, flabbergasted होगा. ठीक है, तो आप डायरेक्टली इसको यूज नहीं कर सकते. His phlegmatic approach to handle any pressure situation made flabbergasted. ठीक है, let me check. cool लिख सकते हो. ठीक है. Swami Vivekananda was a phlegmatic character, hence they are lionized. Absolutely good. Right. Sameer, you are using all the vocabularies what we discuss in the class, but the one thing is missing, that you are not taking initiative, you are not making videos. The way you are using vocabulary, I can guarantee you that you have remembered lots of words. Right. But the main thing is that hoga kya? The vocabulary, the sentences what you are giving me right now, it simply shows that you know lots of vocabularies. अब आपका क्या होता जा रहा है ना, आपका राइटिंग स्किल्स तो इंप्रूव होता जा रहा है, बट स्पोकन इंग्लिश का मुझे आइडिया नहीं है कि आपने अभी कितने वीडियोस बनाए. आई थिंक यू मेड ओनली 2 or 3 वीडियोस, राइट. उसके अलावा आपका राइटिंग स्किल्स अच्छा हो रहा है. यू मस्ट बी यूजिंग ऑल दीज vocabulary in your email communication, and you must have got lots of appreciation from your manager, senior manager as well. But the thing is that if you are unable to speak, अगर आप, मुझे नहीं पता मैं क्यों वर्ड यूज कर रहा हूं अनेबल, बिकॉज मैंने अभी तक देखा नहीं है कि हाउ यू आर मेकिंग वीडियोस. एक चीज ही तो दूर है आपकी यार, राइटिंग स्किल्स तो आपकी अच्छी हो रही है, बिकॉज व्हेनेवर आई आस्क वोकैबुलरी यू यूज ऑल द प्रीवियस वोकैबुलरी व्हाट वी ऑलरेडी डिस्कस्ड इन द क्लास. राइट, वन थिंग इज मिसिंग. प्लीज टेक इनिशिएटिव, स्टार्ट मेकिंग वीडियोस. मैं आपको बार बार बोल रहा हूँ, यू वोंट गेट सेकंड चांस इन योर लाइफ. नहीं मिलने वाला, क्योंकि बार बार आप सिर्फ लाइफ में इंग्लिश सीखने के लिए नहीं आओगे. ओके सर, प्लीज स्लाइड अभी ओपन हो गया राहुल, राइट. लेट मी ओपन द स्लाइड. ओके, you enrolled in the course I think yesterday, day before yesterday, or the last session only, right. ये vocabulary का जो word है जो पिछले सैटरडे को हम लोगों ने दिया था, the word here is phlegmatic, right. अगर हम part of speech की बात करें, it is an adjective. meaning क्या होता है? the person who is relaxed and peaceful, the person who doesn't take any tension. ठीक है, उसको कोई ऐसा फर्क नहीं पड़ता. and if you talk about the tonality of this word, it is positive, tone positive है. इसका मतलब आप उस बंदे को phlegmatic नहीं बोल सकते कि चाहे कितनी भी प्रॉब्लम आए उसको कोई फर्क नहीं पड़ता, वो ढीठ है.
फ्लेगमेटिक को आप ढीठ से कंपेयर नहीं कर सकते, बिकॉज ढीठ की जो टोन आती है, ठीक है, जिसको आप लोग बोल सकते हो कि एडमेंट है वो बंदा, ठीक है, किसी की बात सुनता नहीं है, वो जो है वो नेगेटिव टोन में है। फ्लेगमेटिक की जो टोन आती है, राइट, इट इज कंसीडर्ड एज अ पॉजिटिव टोन। इफ यू टॉक अबाउट द सिनोनिम, काम यूज कर सकते हैं, कूल यूज कर सकते हैं, ट्रैंक्विल यूज कर सकते हैं। इफ यू रिमेंबर वी डिस्कस्ड अबाउट दिस वर्ड ट्रैंक्विल, पुराने सेशंस जब आप लोग देखोगे उसमें हम लोगों ने ट्रैंक्विल के ऊपर काफी डिस्कशन किया है। आई गिव एग्जांपल ऑफ ट्रैंक्विलाइजर्स। अब ये सब चीजें सारी की सारी आपके पास क्लब होती जाएंगी। By the end of these 60 lectures, what you have been receiving every Monday, Wednesday and Friday, जब तक आपके पूरे लेक्चर्स कंप्लीट होंगे ना, पूरे के पूरे, आपका वोकैबुलरी बैंक बहुत रिच हो चुका होगा। हर वर्ड अब देख लो यार, ये वर्ड फ्लेगमेटिक में ट्रैंक्विल वर्ड आ रहा है। अब ये अगर यदि आप लोगों ने पुराने सेशंस, जिन लोगों ने अभी कोर्स ज्वाइन किया, जब आप लोगों को ये वर्ड्स आगे लेक्चर्स में मिलते जाएंगे, देन यू विल रियलाइज कि वोकैबुलरी सीखने का तरीका यही होता है। इतने वर्ड्स को देख लो, उसको आप अपने कॉन्टेक्स्ट से रिलेटेड यूज करो, तो एक वर्ड को जो दिया जाता है वर्ड ऑफ द डे, इट गिव्स यू लॉट्स ऑफ मीनिंग्स। अब ये वर्ड ट्रैंक्विल वाला अगर यदि पहले हम लोगों ने किसी सेशन में अगर आप लोगों ने नोटिस किया होगा, इन दैट केस यू मस्ट हैव रियलाइज्ड, हाँ फ्लेगमेटिक इससे हम लोग लिंक कर सकते हैं। ओके, प्लेसिड, कंट्रोल्ड, पॉइज्ड, एक्वेनिमस, आई लव दिस वर्ड। एक्वेनिमस हम लोगों ने डिस्कशन किया हुआ है इस वर्ड के ऊपर भी, ठीक है, हाईली पॉजिटिव टोन है। फ्लेगमेटिक की टोन पॉजिटिव है, एक्वेनिमस की टोन पॉजिटिव है। सर कैन आई कंसीडर इट एज वन ऑफ माय पर्सनालिटी कैरेक्टर्स? एब्सोल्युटली यस। क्या इसको मैं अपनी पर्सनालिटी कैरेक्टर का पार्ट यूज कर सकता हूं? सर आप आराम से यूज कर सकते हो, दैट यू आर अ फ्लेगमेटिक पर्सन। ठीक है, गुड। सेंटेंस व्हाट आई मेड ड्यू टू सचिन्स फ्लेगमेटिक नेचर, ही इज कॉल्ड द गॉड ऑफ क्रिकेट, राइट। चाहे अपोजिशन टीम कुछ भी कर रही हो, ठीक है, अंपायर का डिसीजन रॉन्ग हो, कैसा भी हो, राइट, ही वाज ऑलवेज काम कंपोज, ही वाज एक्सट्रीमली पॉइज्ड, ही वाज इनटू द एक्वेनिमस स्टेट बिकॉज सचिन इज फ्लेगमेटिक। ये हम लोगों ने एग्जांपल लिया सचिन तेंदुलकर का। यू टुक एग्जांपल ऑफ एनीबॉडी। आप अपने घर में अपने पेरेंट्स में से किसी को बोल सकते हो कि मेरे पेरेंट्स का नेचर कैसा है, फ्लेगमेटिक है। मैं कैसे हूं, फ्लेगमेटिक हूं। मेरा जो बॉस है, ठीक है, वो किस नेचर के है, फ्लेगमेटिक है। ऐसे ऐसे आप कोई ना कोई रियल लाइफ एग्जांपल बना लो, योर जॉब इज डन। इतना ही सफिशिएंट है, आपको बार बार डिक्शनरी खोलने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ओके, गुड। एनी डाउट सो फार? देन वी विल बिगिन। yes, fair enough. The people who couldn't listen me, जिनको एक बार आवाज नहीं आ रही, आप लोग एक बार अपने डिवाइस चेक कीजिए, बिकॉज आई आस्क्ड, पीपल सेड सब कुछ सही बढ़िया है। चेंज योर डिवाइस, इंटरनेट कनेक्शन को एक बार देख लीजिए, बिकॉज एवरीथिंग इज गुड फ्रॉम आवर एंड। ओके, लवली। लेट मी ओपन द स्लाइड। हाउ टू हैंडल टफ इंटरव्यू क्वेश्चंस, ये आज के वेबिनार का एजेंडा है, जिसमें हम लोग डिस्कशन करेंगे कुछ इंटरव्यू क्वेश्चंस को, जो टफ इंटरव्यू क्वेश्चंस होते हैं, जो दीज क्वेश्चंस में मेक यू और ब्रेक यू। ये चीजें होती हैं जो आपके सिलेक्शंस के ऊपर, बिकॉज आज हम लोग डिस्कशन करेंगे, वी वोंट बी डिस्कसिंग अबाउट योर टेक्निकल स्किल्स को आप कैसे पोर्ट्रे कर सकते हो, दैट्स अ सेकेंडरी पार्ट, जो हम लोगों ने प्रीवियस सेशंस में भी काफी कंप्लीट किया है। जैसे जैसे आपको सेशन आते जाएंगे, यू विल गेट टू नो व्हाट इज द इंपॉर्टेंस ऑफ टेक्निकल स्किल्स, हाउ यू कैन पोर्ट्रे देम एंड हाउ यू कैन पैकेज देम, राइट, इन टर्म्स ऑफ योर स्पीकिंग वाला पार्ट। आज हम लोग बात करेंगे, दीज आर द कपल ऑफ क्वेश्चंस व्हिच सिंपली असेस योर पर्सनैलिटी ट्रेट। पर्सनैलिटी ट्रेट पता करता है हायरिंग मैनेजर, इफ ही और शी आस्क दिस क्वेश्चंस। मैं आप लोगों को कुछ सेट एग्जैक्टली मैं आपको फ्रेमवर्क भी दे दूंगा कि व्हाट यू हैव टू स्पीक। अब आपके ऊपर डिपेंड करता है, आप चाहो तो उनको एज इट इज रट लो, और आप चाहो तो उसके अंदर कुछ मॉडिफिकेशन कर सकते हो, बिकॉज ऑल दीज थिंग्स व्हाट आई हैव रिटन एंड व्हाट आई विल बी गिविंग टू यू, राइट, इट कम्स विद माय एक्सपीरियंस। आप उसके अंदर कुछ ना कुछ ट्वीक कर लो, अपनी अपनी इंडस्ट्री से रिलेटेड चीजें को जोड़ लो, एंड योर जॉब इज डन। आई वोंट रेकमेंड यू कि एज इट इज लाइन से लाइन रट लो, कोई बहुत मैंने कोई बड़ी चीज नहीं लिखी उसके अंदर। यू कैन ऑलवेज पैराफ्रेज इट। इफ यू आर इनटू दिस कोर्स, यू कैन इजीली पैराफ्रेज द सेंटेंस। आप कैसे उसको सेंटेंस को पैराफ्रेज कर सकते हो, यू नो बेटर देन एनीबडी एल्स। मतलब क्या हुआ, उस सेंटेंस को कैसे चेंज करना है ताकि वो पूरा का पूरा एक रटा हुआ नहीं लगे, नहीं तो पता चला आप कंटिन्यू एक ही चीज को घोट के बैठे हुए हो। बट वन थिंग आई ऑलरेडी डिस्कस, दैट इज योर एलिवेटर पिच। एलिवेटर पिच होगी आपकी, उसको एज इट इज आपको कंटिन्यू प्रैक्टिस करना है जब जब आप अपने इंटरव्यूज की तैयारी कर रहे हो। एलिवेटर पिच को हर दिन आप मान के चलो कि आपको 5 से 10 दिन तक कंटिन्यू यू हैव टू वर्क अपॉन योर एलिवेटर पिच, राइट। क्रैम इट, वर्ड टू वर्ड क्रैम कर लो। इफ समवन वेक्स यू अप, राइट, एट मिडनाइट, 12 बजे भी कोई आपको उठा के पूछता है कि व्हाट इज योर एलिवेटर पिच, यू हैव टू स्पीक। ओके, उस चीज को आपको रटना है, और एलिवेटर पिच सबकी अलग अलग होगी।
Sent a mail for review 2 days back. My 2 video clippings not reviewed. Bachu, we haven't received any video. अगर आप 2 दिन पुराने बात कर रहे हो तो I'm not sure we have received any video clip from your end. Right? Please talk to my team. आप एक बार उनसे एक बार बात कर लेना और आप एक बार वापस उसको सेंड कर देना तो we will review it. Okay? No need to worry. Within 24 hours में तो हो ही जाता है रिव्यू, इससे ज्यादा टाइम नहीं लगता. हो सकता है आपका उसमें शो ही ना कर रहा हो, आपकी अपलोडिंग फेल हो गई हो. जस्ट टॉक टू माय टीम और वो पूरा का पूरा आपको बता देंगे. ओके, ग्रेट. सो द फर्स्ट क्वेश्चन व्हाट hiring manager generally ask, where people generally get into the trap, right, that is how to answer your strengths and weaknesses. इसके ऊपर क्वेश्चन जनरली पूछा जाता है. अब ये क्वेश्चंस पूछने का रीजन क्या होता है? What are the strengths and weaknesses we have to speak, right? How do we speak? How do we frame sentences, right? I will give you the complete list. You have to play safe, right? Whenever you are talking about strengths and weaknesses, I would be giving you complete idea कि क्या-क्या चीजें हम लोगों को बोलनी है. पहला क्वेश्चन आता है कि why this question is asked. हमेशा strengths और weaknesses पूछी ही क्यों जाती है? Because it is not generally related. Everybody knows. जब वो आपका रेज्यूमे देखेंगे उसको वैसे पता है कि आपका का एरिया ऑफ एक्सपर्टीज क्या-क्या है. उसके बाद भी, राइट, व्हाई दिस क्वेश्चन इज आस्क्ड. देखो, क्वेश्चन पूछने के लिए क्या होता है ना कि अब सब किसी को पता है, whenever you submit your resume, everybody knows. Then they, even they ask, tell me about yourself, and you would be speaking the same thing which is written in your resume. आप वही चीज बोलोगे जो आपके रेज्यूमे में भी लिखा रहता है, but still they will simply ask, please tell me something about yourself. तो वैसे ही जब ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि what are your strengths and weaknesses, because इंटरव्यूअर हायरिंग मैनेजर होता है ना, दे डोंट वांट टू डू एनी हार्ड वर्क. उनको आपकी पर्सनैलिटी के बारे में जानने के लिए ऐसा नहीं कि आप पूरी की पूरी चीजों को गो थ्रू करोगे, नहीं तो अदरवाइज दे वुड हैव टू आस्क लॉट्स ऑफ क्वेश्चंस, राइट. वो पूछेंगे कि व्हाट आर द चैलेंजेस यू फेस इन योर प्रीवियस ऑर्गेनाइजेशन, राइट, व्हाट वाज द टफेस्ट पार्ट इन योर लाइफ. उससे अच्छा ये होता है वो सिंपली दे आस्क दिस क्वेश्चन, राइट, व्हाट आर योर स्ट्रेंथ्स एंड वीकनेसेस. ये क्वेश्चन होता है, इट विल डेफिनेटली हेल्प, राइट, देम टू एनालाइज योर पर्सनैलिटी ट्रेट. आपकी पर्सनैलिटी का कौन सा पार्ट है, स्ट्रांग है, और कहां पे, विच आर द प्लेसेस वेयर यू नीड इंप्रूवमेंट. बस ये तरीका, ये रीजन होता है. इसके अलावा इसका कोई सिग्निफिकेंस नहीं है. सो डज इट प्ले अ क्रूशियल रोल? एब्सोल्युटली यस. स्ट्रेंथ और वीकनेसेस बहुत बड़ा रोल प्ले करती हैं. स्ट्रेंथ को तो चलो मैं फिर भी एक बार के लिए अवॉइड कर लूं, बट वीकनेसेस यू हैव टू स्पीक, राइट, एवरी वीकनेस विद कॉन्शियस. आपको एक एक चीज के ऊपर ध्यान देना है कि आप क्या क्या चीज बोल रहे हो, बिकॉज मैंने आपको हमेशा बोला, एक भी नेगेटिव चीज, राइट, आपको अपॉर्चुनिटी मिस करवा सकती है आपके जॉब अपॉर्चुनिटी को लेके, इररिस्पेक्टिव ऑफ एनी इयर्स ऑफ एक्सपीरियंस यू हैव. डजंट मैटर वेदर यू हैव एक्सपीरियंस ऑफ 10 years or 15 years. Day before yesterday only I was having a discussion with one of my mentees, right. उनसे बात हो रही थी and things didn't work well. रीजन क्या था? He made one mistake. क्या मिस्टेक था? ग्रामेटिकल मिस्टेक थी, दूसरा स्पेलिंग मिस्टेक थी. किस कंपनी का? जिस कंपनी में वो अप्लाई कर रहे थे. मैंने आप लोगों को पहले बताया, आई थिंक लेक्चर 52 और लेक्चर 53 में, यू हैव टू डू द स्पेल चेक. Perhaps he enrolled in this course late. अभी ज्वाइन किया, कब ज्वाइन किया, I had no idea. But the thing is that what I just wanted to tell you कि हम लोगों को जो मैं आपको चीजें बताता जा रहा हूँ, you would definitely get into the trap if you don't follow all the steps. Right? This is the real life example. I'm not supposed to take the name of the person. Right? I had a conversation for more than half an hour. Right? We discussed lots of things about the resume building और क्या क्या चीजें गलती हो रही है. He was rejected. He cleared 3 rounds. 4th round में the feedback what he had received, right, from hiring manager, कि आपके रेज्यूमे के अंदर, ठीक है, स्पेलिंग मिस्टेक्स बहुत ज्यादा थी and there are a couple of grammatical mistakes. I already gave you tools मैंने आप लोगों को दिए हुए हैं कि कौन कौन से टूल से आपको सारी की सारी चीजें चेक करनी है. इट हार्डली टेक्स 15 सेकेंड. 15 सेकेंड में पूरा का पूरा रेज्यूमे आपका स्कैन हो जाता है. अब हुआ क्या, 3 लेवल तक इंटरव्यू भी चला और उसके बाद भी हम लोग रिजेक्ट हो गए. तो ये सारी की सारी चीजें जो छोटी छोटी चीजें हैं, आपको जो हम लोग सीरीज चला रहे हैं, यू हैव टू वर्क अपॉन ऑल दीज थिंग्स. द पीपल हु हैव एनरोल्ड इन दिस कोर्स लेट, अभी जिन लोगों ने कोर्स ज्वाइन किया, लेक्चर 52 आपको मिलेगा, जिससे हम लोगों के शायद इंटरव्यू प्रेपरेशन के पूरे सेशन शुरू हुए हैं. बट डोंट वरी कि आज का चीज कैसी है, ऑल दीज थिंग्स आर इंडिपेंडेंट टू ईच अदर. आज हम लोग सिर्फ स्ट्रेंथ्स और वीकनेसेस के ऊपर बात करेंगे. सो द मेन थिंग इज दैट व्हाई दिस क्वेश्चन इज आस्क्ड, इट हैज 2 रीजन. Hiring manager, recruiters, they don't want to do any hard work upon your profile. So they simply ask, आप strengths और weaknesses बताओ, then they will propagate the discussion और discussion को वो लोग आगे बढ़ाना शुरू करते हैं. Okay? Right. जब भी ये क्वेश्चन पूछा जाता है, they generally give you numbers. Tell me 3 or 5 strengths or weaknesses. Does it mean I have to, enumerate all these 3 or 5 strengths or weaknesses? No. जरूरी नहीं उन लोगों ने 5 आपकी strength और weaknesses पूछी हैं तो आपको पांचों की पांचों numbers पे बोलनी है. You can speak 2 or 3.
वो 2 या 3 आप लोग पूछोगे, देन ही और शी विल स्टार्ट आस्किंग क्वेश्चंस फ्रॉम इट। वो उसमें से 2 या 3 में से एक को पकड़ेगा और उसमें से वो अपने क्वेश्चंस पूछना शुरू कर देगा। इसीलिए कभी भी व्हेन दे थ्रो यू नंबर्स कि टेल मी योर 3 और स्ट्रेंथ्स और 5 स्ट्रेंथ्स और वीकनेसेस, बिकॉज एट दैट मोमेंट ऑफ टाइम हो सकता है आपके पास ये 3 या 5 एकदम से याद ही ना हो। सो बेटर है अगर आप 2 या 3 बोल दोगे, दैट इज गुड, बट यू हैव टू प्रिपेयर बिफोर हैंड। तैयारी कैसे करनी है, क्या क्या स्ट्रेंथ्स एंड वीकनेसेस होगी, व्हाट इज द एग्जैक्ट फ्रेमवर्क, वी विल बी डिस्कसिंग वन बाय वन। लेकिन आपको ये सोचना है कि अगर वो नंबर दे दें तो डोंट गेट ओवरवेल्म्ड कि यार मुझे 5 की 5 बोलनी है। इफ यू स्पीक 2 और 3 दैट इज मोर देन सफिशिएंट। वो इस बेसिस पे नंबर नहीं देगा कि आपको 3 बोली थी या 5 बोली थी तो यू डिडंट स्पीक, दैट इज कंप्लीटली फाइन, बिकॉज ही और शी वांट्स टू इनिशिएट द डिस्कशन। जैसा मैंने आपको पहले बोला, हार्ड वर्क करना पसंद नहीं है, दे सिंपली कैच द मेन थिंग। आपकी एक स्ट्रेंथ को पकड़ लिया, देन दे विल स्टार्ट आस्किंग क्वेश्चंस फ्रॉम देम। Right. Whenever I take interview, if I'm given an opportunity to take interview, if I ask about the strengths and weaknesses, मेरा इंटरव्यू पूरा का पूरा उसी के अंदर भी चले जाता है, राइट, कि वो स्ट्रेंथ वीकनेसेस से फिर हम लोग आपके पर्सनल प्रोफाइल पे आ जाएंगे, चैलेंजेस के ऊपर आ जाएंगे, देन वी विल रिलेट कि स्ट्रेंथ और वीकनेसेस में आर यू टेलिंग लाई। सारी चीजें हम लोग आज डिस्कस करेंगे कि कैसे कैसे चीजों पे यू हैव टू टेक एक्स्ट्रा केयर, स्पेशली व्हेन यू आर स्पीकिंग योर वीकनेस। बात आती है वीकनेसेस की। पहली बात तो जब भी आप अपनी स्ट्रेंथ्स और वीकनेसेस के बारे में बात करो, यू हैव टू बी इन द स्टेट ऑफ इक्विलिब्रियम। स्टेट ऑफ इक्विलिब्रियम का मतलब क्या हो गया? डोंट प्ले एक्सट्रीम। स्ट्रेंथ का मतलब ऐसा नहीं है कि आप बिल्कुल अपने आप को ऐसा दिखाओ कि आप बहुत बड़ी महान आत्मा हो, राइट, यू आर जस्ट लाइक अ डिवाइन सोल और यू आर वर्किंग फॉर ह्यूमन काइंड। आप बिल्कुल इंसानियत का भले करने के लिए आए, यू आर डूइंग चैरिटी, यू आर हेल्पिंग पुअर। अगर आपने नहीं किया तो डोंट डू दीज थिंग्स, बिकॉज दीज थिंग्स आर क्लीशे। क्लीशे का मतलब क्या होता है? द थिंग्स विच एवरीवन स्पीक्स। अधिकतर लोग यही बोलते हैं, ठीक है, कि मुझे लोगों की हेल्प करना अच्छा लगता है, मैं बड़ा सेंसिटिव हूं, जबकि दे डोंट हैव एनी एविडेंस। सो ये चीजें होती है एक्सट्रीम का। अगर आप ग्रीन और रेड को देखोगे, रेड डिनोट्स द वीकनेस एंड ग्रीन डिनोट्स योर स्ट्रेंथ। 1 नंबर पे तो आपको, अगर हम लोग स्केल पे देखें 1 to 10 में, कभी भी आपको 10 और 1 पे नहीं खेलना है। यू हैव टू प्ले इन बिटवीन। 6 to 7 नंबर तक की जो रेंज होती है, उसमें जो भी आपकी स्ट्रेंथ्स और वीकनेसेस आती हैं, यू हैव टू शोकेस दोज स्ट्रेंथ्स एंड वीकनेसेस ओनली। बट सर वो होंगी कौन कौन सी? क्या स्ट्रेंथ्स बोलनी है, क्या वीकनेसेस बोलनी है? कुछ भी बोलना है, लेकिन ये चैरिटी, हेल्पिंग पुअर, ऐसी चीजें आपको बिल्कुल ही नहीं बोलनी है, बिकॉज हायरिंग मैनेजर, रिक्रूटर्स, दे ऑलरेडी नो। अधिकतर लोग यही बोलते हैं कि मैं सॉफ्ट स्पोकन हूं, या फिर जो और चीजें हैं वो हम लोग आगे देखेंगे। इन चीजों को आपको अवॉइड करना है। दूसरा पार्ट, डोंट स्पीक एनी वीकनेस विच शोज योर एक्सट्रीम बैड कैरेक्टर। ठीक है, ऐसा भी एक्सट्रीम लेवल पे आपको अपनी वीकनेस नहीं बतानी है। रीजन भी, इंटरव्यू जनरली हैपेंस फॉर 30 मिनट्स, 1 आवर, ठीक है, 1.5 आवर, 1 से 1.5 घंटा, राइट, दैट वुड बी अ प्रीटी लेस टाइम टू चेंज योर इमेज। स्ट्रेंथ और वीकनेसेस में आपने कोई एक ऐसी चीज बोल दी, राइट, विच सिंपली डाउनग्रेड्स योर इमेज, in that case things would be quite challenging for you to overcome that weakness वाला part। इसलिए बेटर है you have to play safe। स्ट्रेंथ में आप कुछ गड़बड़ करते हो, that is completely fine, but at the time of weakness you have to take extra care। मतलब क्या हो गया? don't play extreme game। आपको हमेशा moderate गेम को खेलना है, because this question, right, is only to play safe। पहली बात तो ये आ जाती है, initially when you are practicing, आपके पास 2 ladder रहेगा। The first moment when you are practicing for your strengths and weaknesses, first of all you have to play safe। Don't use any word which gets you into the trouble। वीकनेस और स्ट्रेंथ में ट्रबल पे 100% लोग अटकते हैं। दूसरी पॉइंट क्या होता है, यही स्ट्रेंथ और वीकनेस आपको हेल्प करेगी टू चैनलाइज द इंटरव्यू कंप्लीटली। एंड आई डिड सेम थिंग whenever I faced any interview, whether it's in my college, whether it's my corporate journey, जब भी मेरा इंटरव्यू होता था, right, I always prepare my strengths and weaknesses। कैसे मैं आपको स्ट्रेंथ बताना हो, कैसे वीकनेसेस बतानी है, कैसे आपको इंटरव्यू को चैनलाइज करना है, वही चीजें मैं आपको डिस्कस कर रहा हूँ। बिलीव मी, राइट, लोग बोलते हैं कि इंटरव्यू प्रेपरेशन के लिए कोई एक्स्ट्रा हार्ड वर्क की जरूरत पड़ती है। इफ यू फॉलो ऑल दीज स्ट्रेटजीज व्हाट वी आर डिस्कसिंग, राइट, इन दीज सेशंस, आपको कभी भी आप इंटरव्यूअर को, ठीक है, अपने हिसाब से चैनलाइज करवा सकते हो। एंड यू कैन, राइट, मेक हिम आस्क दीज क्वेश्चन व्हाट यू वांट हिम टू आस्क। व्हाट आई सेड, मैंने सिंपली बोला आपको कि आपके पास इतनी पावर आ जाती है कि आप जो क्वेश्चंस पूछवाना चाहते हो, इंटरव्यूअर वही क्वेश्चन आप लोगों से पूछेगा। बट फॉर दिस यू हैव टू बी कंसिस्टेंट। डू ऑल दीज मॉक सेशंस, आप कंटिन्यू इंटरव्यूज की प्रैक्टिस करो, स्ट्रेंथ और वीकनेसेस को देखो, सारे के सारे कौन कौन से रेबिटल्स हो सकते हैं, कौन कौन से ऑब्जेक्शन हैंडलिंग हो सकती है, कोई भी नहीं बचने वाला। बट यू हैव टू पुट इन लॉट्स ऑफ एफर्ट्स। बात आती है सबसे बड़ी गलती जो लोग करते हैं, राइट,
देयर शुडंट बी नो कॉन्ट्रडिक्शन बिटवीन योर स्ट्रेंथ्स एंड वीकनेसेस। कभी भी क्या होता है, सपोज कीजिए पर्सन आस्क व्हाट आर योर पॉजिटिव पॉइंट्स, व्हाट आर योर नेगेटिव पॉइंट्स, आप पॉजिटिव और नेगेटिव पॉइंट में कभी भी कॉन्ट्रडिक्शन नहीं होना चाहिए। व्हाट डज इट मीन? सपोज यू आर अप्लाइंग फॉर अकाउंटिंग रोल, आप अकाउंटिंग रोल के लिए अप्लाई कर रहे हो, फाइनेंस के अंदर किसी के अंदर भी हो, लेट्स टेक एग्जांपल ऑफ फाइनेंस डिपार्टमेंट, यू आर अप्लाइंग फॉर अ जॉब दैट इज इन फाइनेंस डिपार्टमेंट, वहां पे आपने अपनी जो स्ट्रेंथ लिख रखी है, यू आर गुड इन नंबर्स, राइट। अकाउंटिंग का मतलब क्या हो गया? यू आर गुड इन नंबर्स, यू लव नंबर्स, यू लव मैथमेटिक्स, साउंड है आपकी मैथमेटिक्स। वहीं पे आपने जो पोजीशन है वो कौन सी है? अकाउंटिंग्स की। आपने बोला मेरी स्ट्रेंथ कैसी है? आई लव नंबर्स, गुड, मैच कर गया। लेकिन आपने जो पोजीशन अप्लाई करी है वो है अकाउंटिंग का, वहीं पे आपने अपनी वीकनेस दिखा दी, राइट, कि मेरी जो वीकनेस क्या है? आई एम नॉट गुड इन नंबर्स। इन दैट केस इट सिंपली क्रिएट्स अ पैराडॉक्स। दोनों के बीच में कितना कॉन्ट्रडिक्शन है? पोजीशन आप अप्लाई कर रहे हो अकाउंटिंग्स की, और आपको मैथमेटिक्स से, आपको नंबर्स से, आपको जो फिगर्स होते हैं वही आपको समझ में नहीं आते। इन दैट केस डोंट मेंशन सच टाइप ऑफ वीकनेस। और मैं तो बोलूंगा कि अगर आप नंबर्स में या फिर आपको ये सब चीजें पसंद ही नहीं है, डोंट अप्लाई फॉर अकाउंटिंग। बेटर है फिर तो आप दूसरी चीज में जाओ ना। तो स्ट्रेंथ्स और वीकनेसेस के अंदर हमेशा देयर मस्ट बी इक्विलिब्रियम, दोनों आपस में कभी भी क्लैश नहीं करने चाहिए। लेट मी गिव यू अनदर एग्जांपल। सपोज यू आर अप्लाइंग फॉर सेल्स, मार्केटिंग, बिजनेस डेवलपमेंट, क्लाइंट एक्विजिशन, इन सब पोजीशंस के लिए अप्लाई कर रहे हो, बट यू आर इंट्रोवर्ट एंड शाय, things would be quite challenging for you, because the people and the hiring manager, the people who are looking for sales and business development professional, marketing professional, they are looking for the person who is extrovert, right, the person who has people person's personality। उनको ऐसे लोग पसंद है जो एक्सट्रोवर्ट होते हैं, the person who can speak very well, वो कैसे भी कन्विंस कर सकते हैं, and the person who is introvert and shy, in that case फिर वो पोजीशन अप्लाई नहीं कर पाएगा। लेकिन ऑन दी अदर हैंड, सपोज कीजिए इफ यू आर अप्लाइंग फॉर फाइनेंस रोल, अब आप फाइनेंस रोल के अंदर अपनी वीकनेस को लिख रहे हो कि आई एम इंट्रोवर्ट एंड शाय, दैट इज कंप्लीटली फाइन। अब आप उसके अंदर इंट्रोवर्ट और शाइनेस को लिख सकते हो, बिकॉज फाइनेंस डिमांड जो डोमेन होता है वहां पे लोग क्या करते हैं, दे आर जनरली लुकिंग फॉर द पर्सन हु इज गुड इन नंबर्स। कंपनी को इतना लॉस नहीं होने वाला, राइट। हमेशा स्ट्रेंथ और वीकनेसेस को आप हमेशा कंपनी पर्सपेक्टिव से, अपने प्रोसेस जिस पोजीशन के लिए अप्लाई कर रहे हो उसके पर्सपेक्टिव से देखो। यू हैव टू एडिट योर रेज्यूमे टाइम एंड अगेन, एज आई ऑलरेडी टोल्ड यू। जब भी आप अपने रेज्यूमे को बनाओ, यू हैव टू मेक सर्टेन चेंजेस अकॉर्डिंग टू द जॉब डिस्क्रिप्शन। तो यही वाला पार्ट आता है। सपोज इफ यू आर अप्लाइंग फॉर फाइनेंस, फाइनेंस में इफ यू आर इंट्रोवर्ट एंड शाय पर्सनैलिटी, मेंशन इट, कोई प्रॉब्लम नहीं है एज योर वीकनेस। लेकिन इफ यू आर इनटू द सेल्स और कहीं कहीं आपको लगता है कि यार मैं इंट्रोवर्ट हूं, पहली बात तो आपको एक्सट्रोवर्ट बनना पड़ेगा, लेकिन इस वीकनेस को उसमें मेंशन मत करो। आई गिव यू द लिस्ट कि कौन कौन सी चीजें आप मेंशन कर सकते हो, एंड ऑल दीज थिंग्स विल हेल्प यू टू प्ले सेफ। वीकनेस के अंदर जो मैं चीजें बता रहा हूं वो आपको फॉलो करनी है, एंड यू वोंट गेट इनटू द ट्रबल, दिस माय प्रॉमिस। स्ट्रेंथ्स वन, हम अगेन लेट मी समवन टाइप्ड contradiction, can you give an example answer to? आकाश यादव, can you give to example or answer to weaknesses? weakness अभी आएगा यार, अभी तो शुरुआत हुई है, अभी तो मैं सिर्फ आपको ये बता रहा हूँ कि कोई contradiction नहीं होना चाहिए। one person asked what is the meaning of contradiction? contradiction का मतलब क्या होता है? अपोज किसी चीज का, राइट। जैसे हम लोग बोलते हैं कि बिल्कुल आपस में चीजें मैच ही ना करें। जैसे मैं आपको एग्जाम्पल दूं कि मैं आपको बोलूं कि आपको अपनी बॉडी बनानी है, राइट, यू हैव टू गेट इनटू द शेप, आपको अपने सिक्स पैक चाहिए, ठीक है, मैंने बोला आपको सिक्स पैक चाहिए। दूसरा मैं आपको बोल रहा हूं कि आपको अपनी जो डाइट के अंदर यू हैव टू कंज्यूम कार्ब्स, आपके अंदर पूरा शुगर इनटेक बढ़ाओ, यानी मैं आपको बोल रहा हूं कि आपको शुगर इनटेक भी बढ़ाना है और आपको अपने सिक्स पैक भी चाहिए। इज इट पॉसिबल? पॉसिबल ही नहीं है। सो बोथ आर दीज थिंग्स आर कॉन्ट्रडिक्टरी, दोनों चीजें कॉन्ट्रडिक्ट करती हैं आपस में। तो ये चीजें होती है जो आपस में कभी मैच ही ना करे। सो द वर्ड हियर इज कॉन्ट्रडिक्शन। ओके, गुड। आकाश, आई होप आंसर योर क्वेरी। अभी तो शुरुआत नहीं हुई है यार, अभी तो आपको पूरे लिस्ट में देने वाला हूं। आई एम जस्ट गिविंग एन आइडिया कि कॉन्ट्रडिक्शन नहीं होना चाहिए दो चीजों के अंदर, स्ट्रेंथ्स और वीकनेसेस के अंदर। आई टुक ओनली बेसिक एग्जांपल। एक मैंने ले लिया कौन सी जॉब ओपनिंग है, और दूसरा मैंने ले लिया कि कैसी उसकी स्ट्रेंथ होनी चाहिए और क्या वीकनेस होनी चाहिए। सपोज कीजिए वन पर्सन आस्क्ड व्हाट इज योर स्ट्रेंथ, यू सेड आई एम पंक्चुअल पर्सन, ठीक है। ऑन दी अदर हैंड जब आपसे कोई वीकनेस पूछे तो बोला कि जनरली ऑन वीकेंड आई एम अ बिट लेजी। अब ये चीजें क्या कर रही हैं? इट शोज योर पर्सनैलिटी। इसीलिए दोनों चीजें कॉन्ट्राडिक्ट है। अगर द पर्सन हु इज पंक्चुअल, ही और शी कांट बी लेजी, पॉसिबल ही नहीं है कि वो लेजी हो। सो ये दोनों चीजें कॉन्ट्राडिक्ट कर रही हैं। ऐसी चीजें हम लोगों को कभी भी अपने इंटरव्यूज में नहीं बोलनी है। नाउ टॉक अबाउट स्ट्रेंथ। वन पर्सन आस्क कि सर स्ट्रेंथ और वीकनेसेस होगी कैसे? पहली बात, हाउ टू फाइंड योर स्ट्रेंथ्स।
जब भी whenever you are writing your resume or whenever you are preparing for an interview, right, sit for at least 10 to 15 minutes, introspect yourself, what are your true strengths, मेरी true strengths क्या क्या हैं. आपको फिर भी दिक्कत होती है, आफ्टर द वेबिनार यू कुड आस्क मी कि सर मैं अपनी स्ट्रेंथ्स में और क्या क्या लिख सकता हूँ. वैसे मैंने पूरा आपको आइडिया दे दिया है. जब हम अभी डिस्कशन करेंगे इस वेबिनार में, आई विल बी गिविंग यू ऑल द स्ट्रेंथ्स एंड वीकनेसेस. उसके बाद भी आपको लगता है यू कुड आस्क मी आफ्टर द वेबिनार, और आप नेक्स्ट सेशन में भी पूछ सकते हो. फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू विजुअलाइज योर पर्सनैलिटी एज अ लीडर. ठीक है, जब भी आप जिस भी ऑर्गेनाइजेशन में जा रहे हो, इवन इफ यू आर अ फ्रेशर, आप कॉलेज ग्रेड हो और सिंपली यू आर अप्लाइंग फॉर अ जॉब, एट दैट मोमेंट ओनली यू हैव टू विजुअलाइज योरसेल्फ एज अ लीडर. अब लीडर का मतलब क्या हो गया? द जॉब ओपनिंग व्हाट यू हैव रिसीव्ड, listen to me very carefully, the job opening what you have received, analyze all the key skills and prove yourself as a leader, prove yourself as an authority. अब authority आप कैसे करोगे? authority आप कैसे बनोगे? once you start making videos. जब तक हम लोग वीडियोस नहीं बनाएंगे, आपको अंदर से कॉन्फिडेंस ही नहीं आएगा. दैट्स व्हाई आई एम टेलिंग यू, आई एम नॉट आस्किंग यू टू मेक अननेसेसरी वीडियोस अबाउट एनीथिंग. हमको सिर्फ वीडियोस किसके ऊपर बनाने हैं? द थिंग्स विच आर रिलेटेड टू माई इंडस्ट्री. आपको 5 साल 10 साल का जितना भी एक्सपीरियंस है, या फिर इफ यू आर अ फ्रेशर, यू आर सर्चिंग फॉर अ जॉब, बट आपने अपना यू हैव ऑलरेडी मेड अप योर माइंड कि मेरा किस इंडस्ट्री में मुझे अपना करियर बनाना है. स्टार्ट मेकिंग कंटेंट, स्टार्ट प्रोड्यूसिंग लॉट्स ऑफ वीडियोस. इट क्रिएट्स योर अथॉरिटी एंड ऑल दीज थिंग्स हेल्प यू व्हेन यू आर डिजाइनिंग योर रेज्यूमे, व्हेन यू आर गिविंग योर इंटरव्यूज. राइट, ऑल आर द रियल लाइफ एग्जांपल्स. आप ग्रुप में जाके देखो हाउ दीज थिंग्स आर हेल्पिंग पीपल. टुडे ओनली वी हैव रिसीव्ड वन फीडबैक फ्रॉम वन ऑफ आवर मेंटीज, राइट, कि कैसे कैसे चीजें हेल्प कर रही है. दैट्स व्हाई आई एम टेलिंग यू. मैं आई एम नॉट ब्रैगिंग अबाउट दिस कोर्स, एफर्ट्स आप लोगों के लिए ही है. राइट, आई एम गिविंग यू कंप्लीट डायरेक्शन. राइट, कंप्लीटली हैंड होल्डिंग हो रही है कि कैसे कैसे आप लोगों को चीजें बोलनी है. मैं आपको कभी नहीं बोलता कि आप अननेसेसरी वीडियोस बनाओ, कि आप किसी भी टॉपिक पे वीडियोस बना लो. इनिशियली फॉर 3 to 4 वीडियो दैट इज कंप्लीटली फाइन, बट वेरी सून यू हैव टू कम ऑन योर ट्रैक. और ट्रैक कौन सा है? यू हैव टू स्पीक अबाउट योर इंडस्ट्री ओनली. एंड बिलीव मी, इफ यू मेड 10 to 15 वीडियो अबाउट योर जॉब प्रोफेशन, यू विल फील इमेंस कॉन्फिडेंस. आप इंटरव्यू छोड़ो, इफ यू आर टेकिंग मीटिंग, आप अपने ऑफिस के अंदर भी बैठोगे, यू विल गेट लॉट्स ऑफ कंटेंट टू स्पीक. क्यों? वीडियोस बनाना इतना आसान नहीं है. यू हैव टू अंडरस्टैंड, यू हैव टू गेट लॉट्स ऑफ डिटेल्स, यू हैव टू डू इंटरनेट रिसर्च. जो भी आप चीजें कर रहे हो, आप हमेशा अपनी कोलीग से बेटर परफॉर्म करोगे, बिकॉज दे आर नॉट पुटिंग इन एफर्ट्स. हर कोई तो कोर्स ज्वाइन नहीं कर रहा ना, हर कोई तो वीडियोस नहीं बना रहा, हर कोई तो वो कंटेंट कंज्यूम नहीं कर रहा विच इज रिलेटेड टू हिज और हर इंडस्ट्री. यू आर पुटिंग इन एफर्ट, सो यू डिजर्व दिस रिजल्ट्स. ठीक है, गुड. तो मैंने आपको क्या बोला कि जब भी whenever you are trying to find out your strength, the first thing what you have to do, you have to visualize yourself as a leader. लीडर किस चीज का? the job description what you have received, and then वहां पे अपने आप को क्रिएट करना है as an authority. फर्स्ट पार्ट हो गया. अब बात आती है हम लोग स्ट्रेंथ्स में. देखो, पहली बात तो जब भी आप स्ट्रेंथ बोलोगे तो डोंट टेल अ लाई. आप अपनी स्ट्रेंथ को हमेशा नेचुरल लेके चलो. बी योरसेल्फ, दिस इज वन ऑफ द इंपॉर्टेंट थिंग्स. अगर मैं अपनी बात करूं, ठीक है, आई एम गुड इन नंबर्स. मैं नंबर्स के अंदर बहुत स्ट्रांग हूं. ठीक है, आई लव मैथमेटिक्स, सब कुछ अच्छा है. बट वेन एवर यू आर टॉकिंग अबाउट माई स्ट्रेंथ्स ओनली, आई लव टू इंटरेक्ट विद पीपल. राइट, आई एम एन एमिएबल पर्सन. मुझे लोगों से बातचीत करना पसंद है. ठीक है, यहाँ पे बात आ जाता है मेरा स्ट्रॉन्ग पॉइंट क्या है? मेरा कम्युनिकेशन स्किल्स. रीजन बीइंग, वहीं पे अगर यदि मैं सपोज कीजिए, गॉड फॉरबिड, इफ समथिंग बैड हैपन्स इन फ्यूचर, कभी ऐसा लगा कि लाइफ में कभी टीचिंग प्रोफेशन ऐसा आ गया जिसके अंदर मुझे कोई मैथमेटिक्स जैसी चीज पढ़ानी है, राइट, अब उस केस के अंदर मैं अपनी स्ट्रेंथ को इमीडिएटली चेंज करूंगा. राइट, स्ट्रेंथ, अभी मेरी स्ट्रेंथ क्या है? रीजन मीन ऑब्वियसली बिकॉज आई लव टू कम्युनिकेट विद पीपल. सारी की सारी चीजें, मेरा कम्युनिकेशन स्किल, दिस इज माई स्ट्रॉन्ग फोर्टे. सो आई वुड बी एग्जिबिटिंग ऑल दीज थिंग्स इन फ्रंट ऑफ रिक्रूटर. वहीं पे सपोज कीजिए, इफ आई एम इनटू द टीचिंग प्रोफेशन वेयर आई हैव टू टीच मैथमेटिक्स टू 10th 11th 12th बीएससी, जिनको भी कभी मैथमेटिक्स पढ़ाना है, इन दैट केस, राइट, मेरा स्ट्रॉन्ग पॉइंट क्या हो जाएगा? राइट, अब वहां पे मैं बोलूंगा आई लव नंबर्स, आई लव टू प्ले विद नंबर्स. क्यों? मेरा जो प्रोफाइल है वो उन सब चीजों से बिल्कुल मैच करेगा, तभी हायरिंग मैनेजर दे विल टेक इंटरेस्ट. अब कम्युनिकेशन स्किल्स तो ऐसी चीज है कि ये तो हर प्रोफेशन में लगता है, और आप सब लोगों का, आई बिलीव, आप लोगों का सारा जो स्ट्रॉन्ग फोर्टे है, दैट मस्ट बी कम्युनिकेशन स्किल्स. द पीपल हु हैव एनरोल्ड इन दिस कोर्स रिसेंटली, आई कैन गारंटी यू
by the end of these 60 lectures, right, you will feel immense confidence. आपके अंदर confidence आएगा and you will feel कि मेरा जो strong forte है that is communication skills. But bear with me, you have to follow all the strategies what are given in all these 60 recorded lectures. आप बार बार उनको देखो, आपके पास कोर्स एक्सेस कंटिन्यू मिलता जा रहा है, तभी आप लोग कम्युनिकेशन स्किल्स को तो स्ट्रॉन्ग बना लोगे. दैट वुड बी योर फोर्टे. लिस्ट ऑफ 5 क्वालिटीज, जो चीजें मैं आपको बताता जा रहा हूं, दीज आर योर स्ट्रेंथ्स. अब strengths होती है, if we segregate, if we classify strengths, right, that into the 2 category. The first one is strengths related to intellect. Intellect का मतलब क्या होता है, जहां पे हम लोग हमारे aptitude की बात करते हैं. Let me write the word aptitude. जहां पे थोड़ा बहुत हम लोग बात करते हैं कि अपनी cognitive power, जहां पे हम लोग रीजनिंग की बात करते हैं, whenever we are talking about some logics. तो लॉजिक्स में देखो स्ट्रेंथ्स को, अब ये बोलते हुए अपना ये मत बोलना कि if someone asks what are your strengths, तो आप बोलोगे if I talk about my strengths related to my intellect, these are my strengths. No, फिर तो लगेगा कि you are prepared, right? The strengths what you are talking about, all these things are fabricated, all these things are manufactured. ऐसे नहीं बोलना. ये तो मैं सिर्फ आप लोगों को सेग्रीगेशन बता रहा हूं कि स्ट्रेंथ्स को, right, we can classify in 2 parts. The first one is strength is related to your intellect, your aptitude, your cognitive power, जहां पे आप अपनी लॉजिकल रीजनिंग के ऊपर अपनी स्ट्रेंथ्स को बताते हो. अब इसमें कौन कौन सा हो सकता है, राइट? क्यूरियोसिटी आपकी स्ट्रेंथ है. बिलीव मी, आप इन चीजों को बोलोगे, यू वुड नेवर गेट इनटू द ट्रबल. आप कभी भी ट्रबल में नहीं फंसने वाले. कैसे स्टेप है? द फर्स्ट थिंग इज दैट यू हैव टू, राइट, एनालाइज योर स्ट्रेंथ्स, राइट डाउन दीज स्ट्रेंथ्स. अब क्यूरियोसिटी, अब सर मैं तो क्यूरियोसिटी में आता ही नहीं हूं. अरे आप हो लो. आप, हम लोग जब ह्यूमन रेस का जो इवोल्यूशन हुआ है, राइट, हम लोग क्यूरियस हैं. आप लोगों को चीजें जानना अच्छा लगता है, तभी आप वोकैबुलरी के ऊपर वर्क करते हो, तभी आप कोर्सेज सीख रहे हो, तभी यू आर प्रोग्रेसिंग, यू आर डेवलपिंग. बिकॉज हमारा नेचर ही कैसा है, वी आर वेरी क्यूरियस. लेकिन इसको एज अ स्ट्रेंथ दिखाना, राइट, ये बहुत बड़ी बात होती है. कैसे होगा क्यूरियोसिटी के ऊपर, ये पहले आप सुनते चले जाओ कि आपको इसका आंसर क्या क्या देने हैं, क्योंकि इसके तुरंत बाद, राइट, हायरिंग मैनेजर ही और शी विल गिव यू काउंटर क्वेश्चन. काउंटर क्वेश्चंस के लिए भी आपको तैयारी करनी है. कैसे होगा वो भी हम लोग देख लेते हैं. इफ समवन आस्क्स योर स्ट्रेंथ्स, स्ट्रेंथ क्या क्या हो सकती है? यू आर क्यूरियस, क्यूरियोसिटी इज वन ऑफ योर स्ट्रेंथ्स. यू आर फोकस्ड. ये जितनी भी चीजें हैं, ऑल दीज थिंग्स आर रिलेटेड टू योर लॉजिकल, जो हम लोग बोलते हैं कॉन्शियस माइंड का. इंटेलेक्ट, एप्टीट्यूड, पावर, नॉलेज, उनके बेसिस पे जो आपकी स्ट्रेंथ आती है वो है यू आर क्यूरियस, यू आर फोकस्ड, यू आर क्विक लर्नर. यू आर क्विक लर्नर. इट इज सुपर इंपॉर्टेंट, स्पेशली इन कॉर्पोरेट. अगर आप कॉर्पोरेट के अंदर हो तो ये चीजें बहुत असेंशियल है. बिकॉज कंपनी डजंट वांट टू ट्रेन यू. कंपनी कभी भी अपने रिसोर्सेज, टाइम, मनी को एम्प्लॉय की ट्रेनिंग के ऊपर खर्च नहीं करना चाहती. वो चाहती है कि दे वांट टू पिक द पर्सन हु इज ऑलरेडी ट्रेन्ड, ताकि उन लोगों के रिसोर्सेज कम हो. तो क्विक लर्नर होता है वो विद इन 10 और 15 और 1 मंथ और विद इन 2 मंथ, राइट, ही और शी गेट्स ऑल द डिटेल्स और वो अपने प्रोसेस में आ सकता है. सो यू कैन यूज दिस वर्ड, यू आर अ क्विक लर्नर. अल्टीमेटली क्या हो रहा है, कंपनी का जो एक्सपेंस है वो आप कम करोगे, बिकॉज द ट्रेनिंग टाइम ऑफ 3 or 6 months what generally normal person takes, you can complete your training part in 1 or 2 months or 30 or 45 days because you are a quick learner. अब ये सब चीजें क्या है, all these things are synced because you are curious. Curious हो तो quick learning क्या करेगा, it underpins, it supports, it reinforces. Because you are a curious तो obvious बात है आप quick learner होगे ही. But hiring manager, recruiters, right, they love this word. क्विक लर्नर, एविड लर्नर. अब आप सपोज कीजिए आप यू आर अप्लाइंग फॉर अ टेक्नोलॉजी कंपनी, तो टेक्नोलॉजी कंपनी में आप बता सकते हो कि जो, अगर आप टेक कंपनी के अंदर जा रहे हो तो आप टेक्नोलॉजी के बारे में जानना पसंद करते हो, तो टेक्नोलॉजी के बारे में जितने भी अपडेट लग रहे हैं, ठीक है, यू लर्न टेक्नोलॉजी वेरी फास्ट. कोई भी ऐप आता है, कोई भी नई लैंग्वेज आती है, सी, CPP, जावा, पाइथन, कोई भी है, राइट, यू आर एबल टू लर्न क्विकली एज कंपेयर टू अदर पर्सन, राइट. एनालिटिकल स्किल्स सुपर इंपॉर्टेंट. इफ यू आर इनटू द फाइनेंस पार्ट, आप ऑपरेशंस पार्ट में हो, ठीक है, एनालिटिकल स्किल्स मैटर अ लॉट. सबसे अच्छी पार्ट आती है कि आपकी एनालिटिकल स्किल्स बहुत अच्छी होनी चाहिए. तो क्या ये सब सिर्फ फाइनेंस इन सब में लगता है? नो. अगर ओवरऑल बात करें तो जो एनालिटिकल स्किल्स है, राइट, इट इज प्रीरिक्विजिट इन ऑल द डोमेन्स. लेकिन अगर आप जहां पे नंबर्स की बात आती है, जहां पे आपको ग्राफ्स, पूरे के पूरे ट्रेंड्स को देखना है, इन दैट केस योर एनालिटिकल पावर ऑलवेज सपोर्ट्स यू. लेकिन क्या हम इसको हर किसी में यूज कर सकते हैं? गो फॉर इट, कोई बुरी बात नहीं है. डिसीजन मेकिंग, इट इज सुपर इंपॉर्टेंट. डिसीजन मेकिंग का मतलब क्या होता है? यू कैन थिंक, राइट, ऑन योर फीट. आपको जब भी चांस लगता है, यू डोंट टेक टाइम, यू टेक क्विक डिसीजंस. बिलीव मी, क्विक डिसीजंस एंड राइट डिसीजंस बोथ आर डिफरेंट. ऐसी ऑर्गेनाइजेशन में आप वर्क कर रहे हो जहां पे आपको एक ऐसा फैसला लेना है, ऐसे डिसीजन लेने हैं, इन दैट केस थिंग्स वुड बी क्वाइट चैलेंजिंग.
अगर आपने कुछ सही अगर वो डिसीजन हो जाता है तो कंपनी वुड बी इनटू द प्रॉफिट, अदरवाइज यू विल हैव टू बेयर लॉस। अब वहां पे जो आपकी डिसीजन मेकिंग होती है, वहां पे क्विक डिसीजन मेकिंग भी होगी और राइट डिसीजन भी होगा। इसीलिए जब भी आप अपनी डिसीजन मेकिंग को बोलो, यू हैव टू इलेबोरेट द डिस्कशन दैट आई एम गुड इन टेकिंग राइट डिसीजन, राइट, क्विकली। दोनों चीजों को आपको साथ साथ बोलना है। ऐसा नहीं है कि आपको कोई डिसीजन लेना है या फिर आपको कोई प्रोडक्ट की लॉन्चिंग करनी है, right, within 5 to 10 days. Just take example of COVID-19. Lots of businesses have been shut down. और कुछ businesses they evolved. Immediately they simply accept the changes and they worked. कितनी चीजें चेंज हो गई हैं। कई कंपनीज के पूरे धंधे पूरे खत्म हो गए। रीजन बीइंग दे वर नॉट रेडी। रेडी तो कोई भी नहीं था, लेकिन कोविड-19 से किस लोगों ने डिसीजन मेकिंग लेके अपने फास्ट कर लिए, राइट, दे ग्रीव। तो ये सब चीजें होती है। अब कंपनी डिसीजन लेने वाले तो आदमी लोग ही है ना, सारे के सारे। तो वही बात आती है कि एम्प्लॉय ही डिसीजन लेता है। तो डिसीजन मेकिंग के साथ, सपोज इफ यू आर टॉकिंग अबाउट योर स्ट्रेंथ, ऑलवेज मेंशन, राइट, दैट यू टेक क्विक एंड राइट डिसीजंस। अटेंशन टू डिटेल, इट इज सुपर इंपॉर्टेंट इफ यू आर इनटू द स्ट्रेटेजिक रोल। खास करके स्ट्रेटेजिक में अगर आप हो तो, लेट मी राइट, रोल ऑफ स्ट्रेटेजी हो गया। फाइनेंस में भी आप ले सकते हो, ये दो रोल है, और ऑपरेशंस में भी जा सकते हो। अटेंशन टू डिटेल्स का मतलब क्या होता है? यू आर वेरी मेटिकुलस, यू ऑलवेज पे अटेंशन टू माइन्यूट थिंग्स, राइट, यू ऑलवेज ट्राई टू फाइंड आउट द अपॉर्चुनिटी वेयर योर प्रोसेस में गेट इनटू द ट्रबल। आपका जो कंप्लीट प्रोसेस चल रहा है, आप जिसमें वर्क कर रहे हो, उसके अंदर कोई ना कोई चैलेंजेस आ सकते हैं, बिकॉज यू आर वेरी कीन टू ऑल द डिटेल्स, राइट, बिकॉज यू आर वेरी मेटिकुलस इन योर ऑपरेशंस। तो अटेंशन टू डिटेल्स, ऑल दीज strengths are related to your intellect power. Curiosity हो गया, फोकस्ड हो गया, क्विक लर्नर, एनालिटिकल स्किल्स, डिसीजन मेकिंग और अटेंशन टू डिटेल। लेट मी काउंट 1 2 3 4 5 6, 6 तो मैंने इनमें से बोल दी। ये कौन सी है? ये सिर्फ इंटेलेक्ट है। अभी हम लोग दूसरी और स्ट्रेंथ्स को देखेंगे, वो तो आपसे 4 या 5 पूछेगा। आप इनमें से अगर इतने भी बता देते हो, मोर देन सफिशिएंट है। 1 या 2 भी बोल दोगे, दैट इज क्वाइट ओके। अभी तो सिर्फ इंटेलेक्ट वाला हुआ है। देन वी विल डिस्कस अबाउट द इमोशंस वाली जो आपकी स्ट्रेंथ्स आती है, ये स्ट्रेंथ्स भी होती हैं। स्ट्रेंथ्स को, एज आई ऑलरेडी टोल्ड यू, वी सेग्रीगेटेड स्ट्रेंथ्स इन 2 पार्ट। द फर्स्ट वन इज स्ट्रेंथ्स रिलेटेड टू इंटेलेक्ट, एप्टीट्यूड हो गया, और सेकंड वन स्ट्रेंथ्स रिलेटेड टू योर इमोशंस। अब ये सारी की पार्ट जो आती है, ये भी आपकी स्ट्रेंथ्स है। टॉलरेंट एंड ऑल दीज थिंग्स आर द क्वालिटी ऑफ अ लीडर। एज आई ऑलरेडी टोल्ड यू बिफोर, इंट्रोस्पेक्टिंग योरसेल्फ, treat yourself, visualize yourself as a leader. The first one thing, I am tolerant. You are tolerant. अब ये सब चीजें क्यों हेल्प करेंगी? क्योंकि ये शो करेगा कि यू आर एम्ब्रेसिंग ऑल द पीपल, ऑल द कल्चर, चाहे वो अलग डाइवर्स बैकग्राउंड के आ जाए। मेरा सेल्स वालों से भी बनती है, मार्केटिंग से भी बनती है, ऑपरेशन से भी बनती है, मेरे को कोई प्रॉब्लम नहीं होती, बिकॉज आई एम टॉलरेंट, आई एक्सेप्ट, राइट, आई एम रिसेप्टिव टू ऑल द पीपल। This is why this word comes into the picture, that is called tolerance. Tolerancy is one of your strengths and it is related to emotions. यहाँ पे कोई मैथमेटिकल कैलकुलेशन, लॉजिक की चीजें नहीं होती। सो दिस इज ऑल्सो वन ऑफ योर स्ट्रेंथ्स। जस्ट टेक एग्जांपल ऑफ योर फैमिली, राइट, मदर्स आर जनरली मोर टॉलरेंट देन फादर्स, राइट। अब ये उनका नेचर होता है, साइकोलॉजिकली विमेन आर मोर स्ट्रॉन्गर, विमेन आर स्ट्रॉन्गर देन मेन। तो उनके अंदर जो टॉलरेंस होती है वो बहुत ज्यादा होती है, राइट। बट इसका मतलब ये नहीं है कि हम लोग उनके ऊपर कोई ना कोई चीजें करते रहे, जो अधिकतर हम लोगों की इंडियन सोसाइटी में होता है, बिकॉज पीपल जनरली misconstrue the word patriarchy. I am not supporting all these things, but generally yes, psychologically देखा जाए तो women are stronger than men. Empathy के ऊपर पूरा का पूरा लेक्चर हम लोगों ने कवर किया है, right, when we talk about the 5 essentials of communication skills, पूरा verbal, non-verbal, knowledge, listening and empathy. Empathy का रोल जो आई थिंक यू मस्ट हैव रिसीव्ड लेक्चर 2 और 3। अब ये सारी की सारी चीजें आप लोगों के काम आएंगी। दैट्स आई एम टेलिंग यू, लेक्चर 1 2 3 जैसे जैसे चलते जाएंगे, आप लोगों का पार्ट सारी की सारी चीजें सपोर्ट करेंगी आपको। एम्पैथी का मतलब क्या होता है? यू आर वेरी सेंसिटिव टुवर्ड्स इंडिविजुअल। अगर आप किसी के साथ कोई प्रॉब्लम होती है तो यू कैन शेयर इट, यू कैन फील इट, राइट, वो वाली प्रॉब्लम को आप फील कर सकते हो। ये चीजें बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है इन टर्म्स ऑफ योर जॉब डिस्क्रिप्शन, एंड पीपल जनरली अवॉइड इट, दे नेवर टॉक अबाउट। वो बोलेंगे आई एम हार्ड वर्किंग, वही जो क्लीशे मैंने आपको बताया था, जो एक रटा हुआ पैटर्न चल रहा है। यू हैव टू बी वेरी यूनिक, एज आई ऑलरेडी टोल्ड यू, लॉट्स ऑफ पीपल आर अप्लाइंग फॉर दिस पोजीशन, यू हैव टू बी वेरी यूनिक। अब यूनिक का मतलब ऐसा नहीं है कि यू वुड बिकम अ लाफिंग स्टॉक, आपका कोई मजाक उड़ाने लग जाए। सो ऑल दीज स्ट्रेंथ व्हाट एवर वी आर डिस्कसिंग हियर, थ्रो देम इमीडिएटली। इनको आप आराम से यूज करो। आई यूज्ड इट, राइट, इन माय कॉर्पोरेट जर्नी, इन माय जॉब
जितनी मेरी चली पूरी की पूरी जर्नी, आई यूज इट वेरी ऑफन, ठीक है, और ये सारी की सारी चीजें मुझे बहुत हेल्प करी है। सेंसिटिविटी, अब सेंसिटिविटी और एम्पैथी ऑलमोस्ट सेम होता है, लेकिन एम्पैथी होती है ना, एम्पैथी इज रिलेटेड टू इंडिविजुअल. If I am empathizing with you, in that case, because I am concerning about you only. But if I talk about the whole community, if I talk about the whole process, अब हम लोग, because we are talking about the corporate, if you are talking about the complete process, आप organization की बात करते हो, in that case you are talking about more than one person. In that case जो empathy होती है वो किस में कन्वर्ट हो जाता है, सेंसिटिविटी में, चाहे वो कम्युनिटी हो, सोसाइटी हो. अब ये सब चीजें, एलजीबीटी कोई कम्युनिटी हो गई, पुअर सेक्शन हो गया, ठीक है, ओल्ड एज के लोग हो गए. अब ओल्ड एज क्या है, पूरा का पूरा एक तरीके से आपने सोसाइटी के एक पार्ट को ले लिया. ओल्ड एज जो पीपल होते हैं, इन दैट केस यू आर सेंसिटिव टू देम. अब वहां पे आप एम्पैथी को यूज नहीं करोगे, करने में लोग कर लेते हैं, बट इफ यू टॉक अबाउट द लिटरल मीनिंग, राइट, दिस इज अ डिफरेंस बिटवीन एम्पैथी एंड सेंसिटिविटी. दूसरा, यू आर वेरी फ्लेक्सिबल, आपको ना तो टाइम की प्रॉब्लम रहती है, राइट, यू कैन वर्क 24/7 या फिर यू कैन मैनेज अकॉर्डिंग टू द कंपनीज रिक्वायरमेंट. दूसरा, यू आर विलिंग टू रीलोकेट, आपको कोई रीलोकेशन की प्रॉब्लम आती है तो आप उसके अंदर भी फ्लेक्सिबल हो. दूसरा, प्रोसेस के अंदर कोई चेंजेस होते हैं, इफ प्रोसेस इज गेटिंग रीस्ट्रक्चर्ड, राइट, यू आर प्रीटी फ्लेक्सिबल, यू कैन वर्क एनी अंडर एनी बॉस. सारी की सारी चीजों में, सपोज इफ यू आर गिविंग यू प्रमोशन, इफ यू आर ट्रांसफरिंग यू टू द डिफरेंट डोमेन, राइट, यू आर फ्लेक्सिबल टू एक्सेप्ट ऑल दीज थिंग्स. ऑल दीज थिंग्स आर योर स्ट्रेंथ्स. ये सारी की सारी स्ट्रेंथ्स है विच आर रिलेटेड टू योर जॉब. पेशेंस एंड परसिवरेंस, इट इज सुपर इंपॉर्टेंट. पेशेंस है आपके अंदर. if something bad happens with you, if company is not growing, if you are not meeting targets, if your process is not meeting target, things are quite challenging, you showcase your patience because you are perseverance in nature. पेशेंस का मतलब तो क्या होता है, सिंपल धैर्य. परसिवरेंस का मतलब क्या होता है, कंसिस्टेंसी, राइट. यू नेवर क्विट, यू नेवर गिव अप, यू आर persistent, you are persistent in making videos, that's why you are getting results. The people who are not persistent, the people who are making videos once in a blue moon, in that case, they are making efforts, they are putting in efforts, but they are not persistent. Persistency is related to consistency. दूसरा, self motivated, it is super important. आप patience, perseverance आपका कितना भी है, but if you are not self motivated, right, things won't help you. अब self motivated के मतलब, मैंने यहाँ पे motivated नहीं लिखा, I use the word self motivated because you don't need any external factor to motivate you. As I always keep telling you, motivation is very subjective. You can watch any movie, you can talk to someone, right, he or she can motivate you, but that motivation is not last longer. वो लंबा नहीं चलता. The reason being, you have to be self motivated. If something bad happens with you, you can watch any video, you can read any motivational book, you can read any autobiography, right, you get self motivated and start working. ऐसा नहीं है कि आप बैठे हुए and you are looking up to some person that who can motivate you, उसके बिना आपका काम नहीं होगा. Generally kids face this problem because छोटे बच्चे होते हैं, उनको तो शुरुआत में they are always looking up to their parents whenever something bad happens with them. But if we talk about ourselves, right, you have to be self motivated. Let me write down this word. एक word होता है साइकोलॉजी के अंदर, this is called autocorrect. autocorrect का मतलब क्या होता है कि आपको, you don't need any external person, right, to correct you. सपोज कीजिए you want to make your video, but nobody is motivating you, right, parents or your friends, right, they are making fun of you. In that case, right, all these things won't influence you. Reason being, you know which thing is good for me, so you are correcting yourself in auto mode. ऑटो मोड का बेनिफिट ही क्या होता है, सेल्फ मोटिवेटेड पर्सन के अंदर ये क्वालिटी हमेशा होती है. द पर्सन इज ऑलवेज इनटू द ऑटो करेक्ट मोड. बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है. अब ऑटो करेक्ट मोड को आपको वहां पे यूज नहीं करना. यू कैन गो विद द पेशेंस, परसिवरेंस एंड यू आर सेल्फ मोटिवेटेड एंड पीपल वुड लव इट. कोलैबोरेटिव, राइट, यू शोज योर इंक्लूसिव नेचर. ऐसा मतलब नहीं है कि यू आर इम्पोजिंग योर थॉट्स, आइडियाज, आप सिर्फ लोगों के ऊपर थोप रहे हो. यार, यू आर कोलैबोरेटिव, राइट, you have a good listening power आ गई आपके पास, right, you always give respect to other, you always listen to other ideas, then make up a plan because you love to collaborate with others. It shows your team spirit. Leadership, अब जब team spirit और leadership की बात आ जाती है, all these things are very cliche. Everyone mentions कि मेरे अंदर leadership qualities है, मेरे पास leadership की strength है. अरे क्या है, you have to prove yourself. So बात क्या आ जाती है, you are collaborative. Hard working, you can mention it, though it's very cliche, लेकिन आप हार्ड वर्किंग को मेंशन कर सकते हो बिकॉज कंपनीज, राइट,
They love to hire the person who is into the hard working nature. दूसरा बैलेंस, बहुत इंपॉर्टेंट वाला पार्ट है. आई एम बैलेंस्ड इन माई नेचर, वेदर इट्स माई वर्क लाइफ बैलेंस, वेदर इट्स माई थॉट्स. आई कांट गेट इन्फ्लुएंस्ड इजीली. अगर आप मुझे कुछ चीज बोल रहे हो, राइट, आई हैव टू राइट एनालाइज व्हाट आर द प्रोज एंड कॉन्स, देन आई मेक माई ओपिनियन, राइट. सो आई एम वेरी न्यूट्रल, राइट. नोबडी कैन इन्फ्लुएंस मी. इसीलिए मैं आप लोगों को बार बार बोलता हूं, यू हैव टू कंज्यूम द कंटेंट विच इज रिलेटेड टू योर इंडस्ट्री, विच ऑलवेज हेल्प्स यू टू प्रोग्रेस इन योर लाइफ. डोंट वॉच एनी मूवीज, डोंट वॉच एनी न्यूज चैनल्स विच आर पुटिंग लॉट्स ऑफ गार्बेज. अदरवाइज होता क्या है, यही चीजें आप लोगों को इन्फ्लुएंस करती हैं और आपके थॉट प्रोसेस खराब करती हैं, राइट. यू हैव टू बी वेरी न्यूट्रल. चाहे कोई भी सिचुएशन आ जाए, यू हैव टू एनालाइज व्हाट आर द एडवांटेजेस, डिसएडवांटेजेस, देन मेक योर ओपिनियन. व्हाट आर द पॉजिटिव्स, व्हाट आर द नेगेटिव्स, देन यू मेक योर ओपिनियन. डोंट गेट इन्फ्लुएंस बाय अदर्स ओपिनियन. कोई दूसरा आपको कभी भी इन्फ्लुएंस नहीं कर सकता, बिकॉज यू आर बैलेंस्ड इन नेचर. All these are strengths related to your emotions. अब आती है बात, if someone asks you what are your strengths, so sir, will I have to speak in this way, right? If I talk about my cognitive strength, these are strength, focused हो गया, आपका numbers वाले part हो गया, और emotions वाला no. ये जितनी भी strengths हैं 1 2 3 4 5 6 और ये सारी की सारी जितनी strengths लिखी है, इनमें से आप जो मन करे वो बोल सकते हो, but try to make a combination. आप कुछ पार्ट ले लो अपनी इसका एनालिटिकल स्ट्रेंथ का, कुछ पार्ट ले लो आप अपनी इमोशंस स्ट्रेंथ का. अब इट ऑल डिपेंड्स अपॉन यू इन विच वे. अब इनमें से आप में से कोई ना कोई तो आपकी स्ट्रेंथ होगी. ऐसा तो नहीं है कि सर ना मैं टॉलरेंट हूं, ना मेरे में एम्पैथी है, ना सेंसिटिविटी, फ्लेक्सिबिलिटी, पेशेंस, कोलैबोरेटिव, हार्ड वर्किंग, बैलेंस, ऐसा कुछ नहीं है. एक में से 2 या 3 आपकी, 2 स्ट्रेंथ आपकी इसमें से ले लो, 2 स्ट्रेंथ आप ले लो अपनी एप्टीट्यूड से रिलेटेड. योर जॉब इज डन. अब बात आती है, स्टोरी नेवर एंड्स हियर. यहां से ही गेम शुरू होता है, बिकॉज यू स्पोक अबाउट योर स्ट्रेंथ. अब जब भी स्ट्रेंथ होती है, एज आई ऑलरेडी टोल्ड यू, जब भी आप अपनी स्ट्रेंथ के ऊपर बात करो, यू हैव टू क्रिएट वन स्टोरी. अब स्टोरी आप कब क्रिएट करोगे? नॉट एट द टाइम ऑफ इंटरव्यू. while designing your resume, while preparing for your interview, you have to create the stories. नहीं है तो go to your childhood, कोई ना कोई एक ऐसा इंसिडेंट निकालो which is related to your strength, which shows that you have showed some your strength in that moment of time. Always create stories. Remember one thing when we were discussing about interview strategies, I already told you this technique is called behavioral environmental interview technique, where recruiter or hiring manager, they get you into the situation, right? वो सिंपल आपको एक सिचुएशन देंगे और पूछेंगे कि कहाँ पे आपने अपनी ये वाली स्ट्रेंथ को शो किया. अब आपकी स्ट्रेंथ कोई भी हो सकती है, अगर अभी आपने स्टोरी नहीं क्रिएट कर रखी, in that case hiring manager or recruiter, they will make their opinion, whatever you have spoken, right? All these things are simply a fluke, all these things are simply a complete lie. इसीलिए आप जो भी अपनी स्ट्रेंथ को बोलो, you have to justify it with a story, with a incident. ये सबसे अच्छा पॉइंट होता है what I executed. Whenever I was talking about my strengths, चाहे मेरी इसमें हम लोग इमोशन स्ट्रेंथ को ले लो, चाहे मेरी एप्टीट्यूड की, एकेडमिक की स्ट्रेंथ्स को ले लो, हमेशा आई क्रिएटेड द स्टोरी. यहां से अगर आपने स्टोरीज बताना शुरू किया, आपका इंटरव्यू पूरा का पूरा आपके पावर में आ जाएगा. दैट्स आई एम टेलिंग यू. Always, whenever you create a story, whenever you are speaking a single word, right, that word must have some sense. Because suppose कीजिए, let me take example. You are very curious. जैसे आपने क्यूरियस पूछा, हायरिंग मैनेजर विल पिक यू क्वेश्चन. तभी तो उसने आप अपना हार्ड वर्क, मैंने बोला ना कि दे डोंट वांट टू डू एनी हार्ड वर्क. उनको हार्ड वर्क कभी भी पसंद नहीं होता है, राइट? दे वांट यू टू स्टार्ट द कॉन्वर्सेशन. यू स्पोक अबाउट योर स्ट्रेंथ वाला पार्ट, यू आर क्यूरियस, तुरंत उनको क्वेश्चन मिल गया, अब वो डिस्कशन को आगे बढ़ा सकते हैं. देन दे विल एनालाइज योर पर्सनैलिटी, व्हाट टाइप ऑफ पर्सनैलिटी ट्रेट्स यू पजेस. अब आती है बात, जैसे भी क्वेश्चन पूछेगा, अब आपको तैयारी करनी है अपने बारे में. आई एम वेरी क्यूरियस, तुरंत क्वेश्चन आएगा, ओके, हाउ डू यू सेटिस्फाई योर क्यूरियोसिटी. आप अगर क्यूरियस हो तो आप कैसे अपनी क्यूरियोसिटी को खत्म करते हो. अब सपोज कीजिए यू आर अप्लाइंग फॉर अ टेक्निकल जॉब. इन दैट केस आप बोल सकते हो कि आई विजिट इंटरनेट वेबसाइट, दीज आर द वेबसाइट्स आई विजिट. ओके, वो ये क्वेश्चन पूछ सकता है. ओके, अगर आप क्यूरियोसिटी हो तो आपने कौन कौन सी बुक्स पढ़ी हैं अभी तक, राइट? हाउ मेनी बुक्स यू हैव रेड इन अ ईयर. लिस्ट बना लो पहले से कि ये 2-3 बुक्स का मुझे नाम लेना है. उन 2-3 बुक्स को पढ़ लो ताकि आप अपना कंटेंट बता सको. कि टेक्निकल से रिलेटेड है तो आप टेक्निकल बुक्स बोलोगे, आपके अपने आईटी, फाइनेंस, मेजर जो भी आपकी चीजें उससे रिलेटेड है तो आप वो वाला चीजें बोलोगे. बट यू हैव टू बी आंसरेबल टू ऑल दीज स्ट्रेंथ्स व्हाट यू हैव स्पोकन 5 or 10 minutes बिफोर. जो 5 या 10 मिनट पहले आपने अपनी स्ट्रेंथ्स बोली है, उसके लिए बी प्रिपेयर्ड कि आपके पास कोई ना कोई क्वेश्चंस होने चाहिए. यू आर वेरी फोकस्ड
ही सिंपली आस्क, राइट, शेयर एनी इंसिडेंट जहां पे आपने अपने दिखाया हो कि आप बहुत बड़े फोकस्ड हो और कैसे आप फोकस रहते हो, ठीक है। दूसरा, आपके ऑफिस के अंदर शोर हो रहा है, या फिर आप कोई भी अपने एग्जांपल एक क्रिएट कर सकते हो कि एक ऐसी सिचुएशन थी फैमिली के अंदर जहाँ पे इतना ट्रबल हो रहा था, उसके बाद भी आई वाज रनिंग शॉर्ट ऑफ टाइम, मुझे प्रोजेक्ट सबमिट करना था, आई वर्क फॉर 15 to 16 आवर कंटिन्यूसली डे इन डे आउट, और उसके बाद भी घर में इतनी ट्रबल होने के बाद भी आई सबमिटेड दैट प्रोजेक्ट। अब वो आप कैसे भी कर सकते हो, क्रिएट योर स्टोरी अकॉर्डिंग टू योर पास्ट एक्सपीरियंस। क्विक लर्नर, एनालिटिकल स्किल्स हो गया, डिसीजन मेकिंग हो गया, अटेंशन टू डिटेल हो गया, ऑलवेज क्रिएट सम स्टोरीज बिहाइंड इट। इट शोकेसेस कि हाँ यार इसकी जो स्ट्रेंथ्स है, ऑल दीज थिंग्स आर रिलेटेड। जैसे आपने एग्जांपल लिया, जस्ट व्हाट वी डिस्कस कपल ऑफ मिनट्स बिफोर, कि आपके घर में प्रॉब्लम था, राइट, कोई इसका वेडिंग का फंक्शन चल रहा था, उसके बाद भी आपने पूरी चीजों को, आपके पास प्रोजेक्ट को डेडलाइन में सबमिट करना था, यू कंप्लीटेड इट। ये आपका हार्ड वर्किंग भी दिखाता है, इट शोज दैट यू आर लेजर फोकस्ड। जब आप ये स्टोरी सुनाओगे ना, तो रिक्रूटर और हायरिंग मैनेजर आपकी इमेज क्रिएट करता जा रहा है और आपकी सिलेक्शन की प्रोबेबिलिटी बढ़ती जा रही है। स्ट्रेंथ्स ध्यान रखना हमेशा सिलेक्शन की प्रोबेबिलिटी को बढ़ाता है, और जो वीकनेसेस है, ठीक है, वो हमेशा काम आता है फिल्टर के। तो वीकनेस होता है, इट इज जस्ट लाइक अ लैंड माइन। वीकनेस कभी आपके सिलेक्शन को वो नहीं करेगा, सिलेक्शन में हेल्प नहीं करेगा, लेकिन सिलेक्शन को इन्फ्लुएंस जरूर करेगा। इसीलिए स्ट्रेंथ का जो पार्ट है वो है सिलेक्शन का क्राइटेरिया, और जो वीकनेस है इट इज कंसीडर्ड एज अ रिजेक्शन क्राइटेरिया। स्ट्रेंथ के अंदर जो जो चीजें आप बोलते जा रहे हो ना, सिंपली क्या कर रहा है जो रिक्रूटर और हायरिंग मैनेजर है, इट ही और शी सिंपली टिकिंग राइट मार्क्स, अच्छा ये इसके अंदर बढ़िया जाता जा रहा है, ठीक है। दूसरा, ही और शी विल शो इंटरेस्ट, क्योंकि आप एग्जांपल्स दे रहे हो। एज आई ऑलरेडी कवर्ड इन स्टोरी टेलिंग सेशन, आपके पास स्टोरी टेलिंग का जब लेक्चर्स आपके पास आएगा, तब आप देखना उसके अंदर सारी की सारी स्टोरी टेलिंग्स मैंने कैसे पूरा का पूरा चीजें कवर करी है। यू हैव टू डू द सेम थिंग। मैं आपको चीजें बताता जा रहा हूं, द थिंग्स हाउ वी आर ग्रोइंग इन दिस कोर्स, एवरीथिंग इज रिलेटेड टू द थिंग्स जो हम लोग प्रीवियस सेशंस के अंदर जो जो आपको अभी लेक्चर्स मिलते जाएंगे, वो सब चीजें आपको कंटिन्यू हेल्प करेंगी। अब यही चीजें अगर मैं आपको लेक्चर 3 और 4 के अंदर पढ़ाने लगता, इन दैट केस थिंग्स वुड हैव बीन क्वाइट चैलेंजिंग, समझ में नहीं आता आप लोगों को। इसीलिए पहले जो आप लेक्चर 1 to 60 तक कवर करते चले जाओगे, ये सब चीजें क्या करेंगी, उनको और एडवांस करती जाएंगी। ओके, ग्रेट। क्वेश्चन, कैन वी यूज दीज स्ट्रेंथ इन टीचिंग प्रोफेशन? एब्सोल्युटली। टॉलरेंट, आपको तो सबसे ज्यादा टॉलरेंट होना पड़ेगा। द वे किड्स आस्क क्वेश्चन, मुझे नहीं पता आप कौन सी क्लास के बच्चों को पढ़ाते हो, ठीक है, चाहे आप छोटे बच्चों को पढ़ाओ, बड़े बच्चों को पढ़ाओ, ठीक है, आपको तो टॉलरेंट होना पड़ेगा। एवरी पीटीएम पेरेंट्स कम, राइट, चाहे आप कितने भी एफर्ट्स डाल रहे हो, दे ऑलवेज राइट हैव इश्यूज। उनका मतलब ये रहता है, तो वहां पे भी यू शो योर टॉलरेंस, राइट। अब ये सब एम्पैथी टीचिंग प्रोफेशन के लिए तो बहुत जरूरी है, राइट। आपको तो एम्पैथाइज होना ही पड़ेगा। ऐसा नहीं बोल सकते हो कि यार इतनी छोटी सी चीज समझ में नहीं आई, 10 बार पूछ रहे हो, ये सब चीजें, तो वहां पे आपकी ये सारी की सारी क्वालिटीज हैं। डोंट थिंक आई एम यूजिंग दिस वर्ड कॉर्पोरेट। आजकल जितने स्कूल्स हैं, कॉलेजेस हैं, वो भी कॉर्पोरेट से कम नहीं है। तो आपको ये ऐसा नहीं सोचना कि ये सब तो सिर्फ कॉर्पोरेट ऑर्गेनाइजेशंस के लिए हो रहा है। कॉर्पोरेट का मैं एग्जांपल इसलिए ले रहा हूँ बिकॉज मेजॉरिटी ऑफ आवर स्टूडेंट्स, राइट, हैव बीन वर्किंग इन कंपनीज। लेकिन बहुत सारे लोग जो स्कूल्स के अंदर भी हैं, कॉलेजेस के अंदर भी हैं, उनको भी यही चीजें यूज करनी है। आप फ्लेक्सिबल भी हो, होता नहीं है आप लोगों के साथ, लगती होगी आप लोगों के एग्जाम्स के अंदर ड्यूटी, आपको भी गुस्सा आता होगा, उस टाइम पे भी आपको जाना पड़ता होगा। टेक एग्जांपल ऑफ कोविड-19, पूरी की पूरी चीजें बंद हो गई, बट टीचर्स आर वर्किंग, स्टिल उनकी कंटिन्यू क्लासेस चल रही हैं। लॉकडाउन खत्म हुआ है नहीं हुआ, दे आर टेकिंग क्लासेस बिकॉज यू आर फ्लेक्सिबल, यार यू आर अडेप्टेबल टू ऑल दीज थिंग्स। नहीं किया, लॉट्स ऑफ स्टूडेंट टीचर्स दे हैड नो आइडिया हाउ टू टेक वेबिनार, हाउ टू टेक जूम मीटिंग्स। यू लर्न ऑल दीज थिंग्स, यू आर अ क्विक लर्नर। लोग पता नहीं कब सीखे, आप लोगों को स्कूल ने ट्रेनिंग करी नहीं कराई, यूट्यूब पे आपने देखा, लॉट्स ऑफ टीचर दे डिडंट हैव एनी आइडिया हाउ टू मेक पीपीटी, दे लर्नड ऑल दीज थिंग्स। इट शो दैट यू आर अ क्विक लर्नर। तो ये चीजें टीचिंग प्रोफेशन में तो पूरा का पूरा मैच करेंगे, आप ऐसे नहीं कह सकते। ओके, ग्रेट। हार्ड वर्किंग, कोलैबोरेटिव, यू ऑलरेडी आर। सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट यही मैं आपको बार बार बोल रहा हूं, इफ यू आर गुड इन योर स्ट्रेंथ्स एंड वीकनेसेस, वीकनेस को हम लोग बाद में देखेंगे, यू कैन इजीली चैनलाइज योर इंटरव्यू अकॉर्डिंग टू योर विश। जैसा आप चाहते हो वैसे आप इंटरव्यूअर को पूरा का पूरा अपनी उंगली पे घुमाओगे। द थिंग इज दैट यू हैव टू बी गुड इन स्टोरीज, you have to be honest with your strengths, you have to frame the complete story behind 2 or 3 strengths what you have spoken। 2 या 3 स्ट्रेंथ के ऊपर कोई ना कोई आप स्टोरीज बना लो हमेशा, क्योंकि ये सब चीजें आपको हमेशा हेल्प करने वाली हैं। अब स्टोरीज इमोशंस में सर, अब जैसे टॉलरेंट के ऊपर स्टोरी कैसे बनाओगे, क्रिएट एनी स्टोरी। अब
सपोज कीजिए कि आपके साथ ऑफिस के अंदर, ठीक है, कुछ चीज बुरी होती है, यहाँ पे आपको लगता है कि क्लाइंट आपके साथ मिसबिहेव कर रहा है, टेक एग्जांपल ऑफ क्लाइंट, राइट, कि गलती आपकी नहीं थी, उसके बाद भी क्लाइंट सिंपली शाउटेड। अब उस चीज में आपने कैसे कोप अप किया? आई सिंपली पैसिफाइड हिम, राइट, आई एनालाइज्ड, आई अंडरस्टूड हिम, ठीक है, और उसके बाद मैंने उसको ऐसा सोल्यूशन दे दिया। इट शोज योर टॉलरेंट नेचर। अब ये सब चीजें आप लोगों को कंटिन्यू आनी पड़ेगी। सपोज कीजिए इफ यू आर अ फ्रेशर, अब सर मैं फ्रेशर हूं, मैं अगर अप्लाई कर रहा हूं किसी के अंदर, तो मैं कैसे टॉलरेंट नेचर दिखाऊंगा? गुड, अब फ्रेशर से एक्सपेक्ट नहीं किया जाता कि आप ये सब चीजें बात करोगे, कि आप क्लाइंट के बारे में बात कर रहे हो या फिर पुराने एक्सपीरियंस की बात करोगे। गो टू योर कॉलेज टाइम, राइट, जस्ट टेक माई एग्जाम्पल, अगर मैं अपना एग्जाम्पल लूँ, राइट, आई एम ए वेजिटेरियन, मैं पूरा वेजिटेरियन हूँ, और आई कुडंट रेजिस्ट कि मैं कभी भी नॉन वेज ऐसी चीजों को मैं देख भी नहीं पाता था। अब हुआ क्या, व्हेन आई टुक एडमिशन इन माय इंजीनियरिंग कॉलेज, इन माय हॉस्टल, राइट, आई मेट लॉट्स ऑफ माय फ्रेंड्स। अब वहां पे क्या हुआ कि अब आप वहां पे आप किसी को ऐसे वो नहीं कर सकते कि कोई वेज है कोई नॉन वेज है। तो वहां पे क्या हुआ, धीरे धीरे चीजें एक्सेप्ट करी मैंने। अब आज मेरे सामने अगर मैं इफ आई एम टेकिंग माय लंच डिनर कुछ भी कर रहा हूँ, इफ समवन इज हैविंग नॉन वेज, आई वोंट हैव एनी प्रॉब्लम, रीजन बीइंग आई एम फ्लेक्सिबल, आई एक्सेप्टेड दीज थिंग। तो ये सब चीजें क्या हुआ, इट इज अ गुड एग्जाम्पल फॉर अ टॉलरेंट नेचर, बिकॉज यू रेस्पेक्ट। आप किसी को भी डिस्क्रिमिनेट नहीं कर सकते ऑन द बेसिस ऑफ देयर फूड हैबिट्स। अब वो लोग वो नॉनवेज खा रहे, तो इसका मतलब ये नहीं कि मैं नहीं बैठूंगा उनके साथ, या फिर ऐसा नहीं है। अब ये सब चीजें क्या हुआ, आई लर्न ऑल दीज थिंग्स। अब ये सब इसकी जो चीजें स्ट्रेंथ हुई, ये डेवलप हुआ, एंड दिस इज वन ऑफ द बेस्ट एग्जांपल्स, right? Because in my interview with one of our IT clients, when I was in my college campus, right, he asked me this strength, and I took this example. इसीलिए मैं आपको बोल रहा हूँ, जरूरी नहीं है कि आपको सिंपल हमेशा आप यही सोचो कि एक्सपीरियंस लोगों के लिए भी होगा। At that moment of time, I was in final year only, and I took this example, and I could sense it. How did that recruiter feel? क्योंकि he didn't expect कि इतना आंसर भी कोई दे सकता है, सारी की सारी चीजें। तो ये जितने एग्जाम्पल्स हैं, बिकॉज आई एनालाइज्ड माई सेल्फ, दैट वॉज द रियल एग्जाम्पल। द थिंग हैपेंड विद मी, पूरा का पूरा पास से आज कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है, मेरे सामने कोई बैठ के खा रहा है, ठीक है, बिकॉज आई एक्सेप्टेड, एंड द वे आई स्पोक, दैट वॉज अ कंप्लीट ट्रुथ। हमेशा आप अपनी लाइफ को देखो, आपके पास ऐसा कोई नहीं है कि मेरी कोई स्ट्रेंथ ही नहीं है। All of you, the people who have been watching this webinar, all of you have immense strengths and weaknesses, but आपने अभी तक पहचाना ही नहीं है। इसलिए बोला जाता है आप अपनी स्ट्रेंथ्स को पहचानो, ताकि आप उसके ऊपर वर्क कर सको। वीकनेसेस के ऊपर जो स्ट्रेंथ्स को आप हमेशा बढ़ाओ, और वीकनेसेस पे आप वर्क करो। एम्पैथी पे बात कर सकते हो, सेंसिटिविटी पे बात कर सकते हो। जस्ट एक एग्जांपल, हम लोग बात करें बैलेंस नेचर पे, सबसे ज्यादा लोग अटकते हैं। मैंने आपको बोला था कि आई कांट बी इन्फ्लुएंस्ड इजीली। You must have noticed these things, as I already told you. Never get influenced. Never, watch content which gives you garbage. Take example of news channel. अब suppose कीजिए you are having a discussion with one of your friends. He generally supports left wing. Another friend, he supports right wing political parties. One supports BJP, second one supports Congress. अब जब ये लोग आपसे बातचीत कर रहे हैं, in that case you are not supposed to make your opinion according to their opinion. बिकॉज यू आर बैलेंस्ड इन नेचर। आप बीजेपी की पॉजिटिव पॉइंट्स निकालोगे, कांग्रेस के पॉजिटिव पॉइंट निकालोगे, एंड ऑल दीज थिंग्स यू लर्न। ये चीजें ही आपको क्या बनाती है, बैलेंस नेचर का बनाती है, बिकॉज यू कांट बी इन्फ्लुएंस्ड। बिकॉज जब आप वंस यू स्टार्ट वर्किंग विद एनी ऑर्गेनाइजेशन, इन दैट केस सपोज क्लाइंट इज अप्रोचिंग यू, ही और शी इज गिविंग यू लुक्रेटिव ऑफर, बट आप पहली बार में देख के ये नहीं सोच सकते कि यार हाँ इसके साथ ही हम लोग काम कर सकते हैं, बिकॉज यू हैव टू गो टू द ऑल द टर्म्स एंड कंडीशन, बिकॉज यू आर बैलेंस्ड इन नेचर। आप ऐसे नहीं कि इमीडिएटली आपने सिंपल साइन कर दिया, आरएफपी आया, उसके बाद आपने सीधा बोला हाँ ठीक है इस वेंडर को हम लोग साइन अप कर देते हैं। रीजन बी यू आर बैलेंस्ड इन नेचर। दैट्स व्हाई आई एम टेलिंग यू एवरी स्ट्रेंथ व्हाटएवर वी आर डिस्कसिंग हियर, ऑल दीज थिंग्स आर रिलेटेड टू योर पर्सनल एंड प्रोफेशनल लाइफ बोथ। ओके, ग्रेट। डज एनीबडी हैव एनी डाउट? कोई डाउट है इस तक? देन वी विल बिगिन। इफ एवरीथिंग इज गुड प्लीज टाइप यस। Yes, yes, good. Sir, I joined this course today only. हाँ, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, एवरीथिंग इज बीइंग रिकॉर्डेड। ये लेक्चर भी रिकॉर्ड हो रहा है और मंडे को आपके कोर्स में ऐड हो जाएगा। ट्यूसडे मॉर्निंग तक, ट्यूसडे आफ्टरनून तक ये वाला लेक्चर आपको मिल जाएगा। मंडे वेडनेसडे फ्राइडे को आपके पास लेक्चर आ रहे हैं।
प्लीज डिस्क्राइब परसिवरेंस. परसिवरेंस का मतलब क्या होता है? यू आर कंसिस्टेंट इन एफर्ट. इफ यू आर नॉट गेटिंग रिजल्ट बट स्टिल यू आर पुटिंग इन एफर्ट्स. यू मेड वन वीडियो, थिंग्स डिडंट वर्क वेल, राइट? यू मेड लॉट्स ऑफ मिस्टेक बट यू डिडंट क्विट. यू अगेन मेड वन वीडियो, ठीक है, फिर गलतियां हुई, ठीक है. इनिशियली यू मेड 10 मिस्टेक्स. लिसन वेरी केयरफुली. इनिशियली यू मेड 10 मिस्टेक्स, ठीक है, एक्यूरेसी का लेवल ये था. देन यू मेड अनदर वीडियो, 9 मिस्टेक्स, एक्यूरेसी का लेवल बढ़ा. देन यू मेड 8, और ऐसे ऐसे करते करते आपकी मिस्टेक्स कम होती चली गई और आपकी फ्लुएंसी, आपकी एक्यूरेसी बढ़ती चली गई. हाउ डिड इट हैपन? रीजन बीइंग यू आर परसिवरेंस इन नेचर, यू आर कंसिस्टेंट इन नेचर. तो परसिवरेंस, कंसिस्टेंस वही होता है. आई हैव नो आइडिया कि राहुल अभी आप क्या करते हैं. सपोज कीजिए यू आर डूइंग बिजनेस. अधिकतर नेटवर्क मार्केटिंग का जो लोग करते हैं, ठीक है, दे शो 1 प्लान, 2 प्लान, 3 प्लान, दे गेट डिस्करेज्ड एंड सिंपली लीव इट. फिर बोलते हैं कंपनी खराब है, ये सब चीजें खराब है. यू आर एन अकाउंटेंट, ठीक है. अकाउंटेंट आप जो हो अभी इसके अंदर, आप अकाउंटेंट के अंदर हो, तो आप सपोज कीजिए आप कोई जॉब के लिए तैयारी कर रहे हो, इंटरव्यूज के लिए तैयारी कर रहे हो. यू वेंट फॉर द इंटरव्यू. पहले इंटरव्यू के अंदर चीजें अच्छी नहीं हुई है, ठीक है. सेकंड के लिए आपने अप्लाई किया. यू ट्राई टू फाइंड आउट द मिस्टेक वेयर आई डिड मेक मिस्टेक. कौन सा वाला पार्ट था जिसमें मेरी गलती हो. देखो होता क्या है ना कि हम लोग जब फेलियर होते हैं ना, चीजें बड़ी क्लीशे लगती हैं कि हाँ यार ये चीजें तो हर कोई बोलता है, बट आई एम गिविंग यू द रियल एग्जांपल. यू वेंट फॉर द इंटरव्यू, थिंग्स डिडंट वेल, ठीक है. अब वहां पे दो सिचुएशन आती है. ईदर वी कैन क्रिप, राइट, वी कैन यूज बैड वर्ड्स फॉर द रिक्रूटर की देखो इसने लिया नहीं, मेरे पास तो इतना एक्सपीरियंस है, कुछ भी है. दूसरा हमारे पास ऑप्शन क्या है? वी एनालाइज द मिस्टेक्स. क्योंकि अब यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे ये बातें होती हैं, ये होती हैं संतों वाली बातें. जैसे मैंने आपको बोला कि महापुरुषों वाली, कि अपनी गलतियों से सीखो. आई एम गिविंग यू द रियल एग्जांपल, राइट. आई एम हिटिंग यू वेरी हार्ड. अब मैं जो चीजें बोलने वाला हूं, ठीक है. अब यहाँ पे क्या होता है, गलती हुई, आप बक लो उसको गाली, रिक्रूटर को, हायरिंग मैनेजर को. नेक्स्ट डे क्या होने वाला है? अप्लाई तो आपको वापस करना ही है. ऐसा तो है नहीं कि आपका मूड खराब हो गया या फिर कुछ होने वाले बाद आप नेक्स्ट टाइम अप्लाई नहीं करोगे. इट्स बेटर एनालाइज द मिस्टेक्स, राइट. देखो हायरिंग मैनेजर, क्या मेरी गलती हुई थी, हाउ डिड आई स्पीक. मैंने आपको फॉलोअप के बारे में बताया. राहुल, आई हैव नो आइडिया, क्या हो सकता है आपने अभी ज्वाइन किया हो. फॉलोअप के बारे में मैंने एक पूरा पॉइंट बताया. वो फॉलोअप की स्ट्रेटेजी को फॉलो करो, कि रिक्रूटर्स को पूछो कि मेरे कैसे फीडबैक लेना है. उसका पूरा का पूरा एक फ्रेमवर्क मैंने बताया है. जो लेक्चर्स आपके पास आते जाएंगे, पता चलता जाएगा. उस स्ट्रेटेजी को यहाँ पे फिट करो. नेक्स्ट डे वापस आप इंटरव्यू की तैयारी करो. क्यों यार, नहीं करोगे तो कोई ऑप्शन तो है नहीं. आपका मूड कितना खराब होगा, 2 घंटे 3 घंटे, वापस तैयारी शुरुआत करनी है. सो इट्स बेटर कि आप लोग कंटिन्यू अपनी गलतियों से सीखो, वापस इंटरव्यू दो. इट शोज योर परसिवरेंस इन नेचर. 2 वीक्स, तो अभी तो आपके पास लेक्चर शायद 5 या 6 तक ही आए होंगे. जब आप पुराने आपके पास 52 लेक्चर तक जब पहुंचेगा ना, तब तक आपको पता चल जाएगा. और यू कुड आस्क टू आवर टीम कि सर मुझे इंटरव्यू प्रिपरेशन वाला एक बार चाहिए, तो आप उस लेक्चर को भी ले सकते हो. ठीक है, गुड. व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन अलॉट्स ऑफ किंजल? वी कवर्ड दैट टॉपिक. ठीक है, ये हम लोगों ने एक उस सेशन में कवर किया है. अलॉट्स का मैंने अगर कवर भी नहीं किया होगा तो मैंने सेशन में बोल दिया होगा. बट व्हाट वी विल डू, वी विल टेक दिस क्वेश्चन आफ्टर दिस वेबिनार. ठीक है, वैसे मैं आपको अभी बता देता हूँ, अलॉट और लॉट्स ऑफ एक ही होता है, कोई डिफरेंस नहीं है. अलॉट ऑफ में क्या होता है, व्हेनेवर वी आर टॉकिंग अबाउट अलॉट ऑफ, इन दैट केस एस नहीं लगेगा. ठीक है, इट इज कंसीडर्ड एज अ सिंगुलर, अलॉट ऑफ, क्योंकि अ यूज हो गया. और लॉट्स ऑफ के अंदर तो एस लगता ही है. दूसरा, यू कैन यूज इट लॉट्स ऑफ, LOADS, ये भी सही है. लेट मी राइट हियर. आप लॉट्स ऑफ बोलो, अ लॉट ऑफ बोलो, या फिर लॉट्स ऑफ बोलो, ऑल आर करेक्ट. ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है. ओके, हम लोग थोड़ा सा भी इसके अंदर डिस्कशन से डेविएट हो जाएंगे, क्योंकि ये वाला पार्ट हम लोग वेबिनार के बाद में भी डिस्कस कर सकते हैं. ठीक है, फिर भी दिक्कत हो तो आप वेबिनार के बाद में पूछ लेना, आई विल गिव यू आइडिया. बट यही आइडिया होता है, कोई डिफरेंस नहीं है, चाहे लॉट्स ऑफ हो, चाहे अलॉट ऑफ हो, या फिर लॉट्स ऑफ हो, LOADS, जो लोड जिसे बोलते हैं हम लोग कि मेरे ऊपर कितना लोड है, लॉट्स ऑफ भी बोल सकते हैं LOTS की जगह. ओके, जब आप बुक्स पढ़ोगे इन सब में देखोगे कि लॉट्स ऑफ की जगह लॉट्स ऑफ भी लगा हुआ आता है. अप्रोच ऑफ स्पीकिंग. अब बात करते हैं हम लोग, लेट मी टेक वीकनेसेस वाला पार्ट. वीकनेसेस, यस, स्ट्रेंथ इज डन, वीकनेसेस. बात आती है वीकनेस जो होता है ना, इट इज वन ऑफ द टफेस्ट थिंग्स. अगर हम लोग बात करें ओवरऑल, एज आई ऑलरेडी टोल्ड यू, क्योंकि यहां से, राइट, इट इज अ लैंड माइन. इफ वी स्टेप इन एट द रॉन्ग प्लेस, हो सकता है कि हमारा रिजेक्शन ही हो जाए. सो वी हैव टू बी वेरी एक्स्ट्रा केयरफुल. और दूसरा, हमारे जो वीकनेसेस बोलनी है, जो मैं चीजें आपको बताता जा रहा हूँ, ऑल दीज थिंग्स यू हैव टू स्पीक. इससे ज्यादा कुछ उल्टा सीधा नहीं बोलना कि आप इमोशंस में आके कोई एक ऐसी चीज बोल लो, दैट वुड दे मे गेट यू इनटू द ट्रबल.
हमेशा जो वीकनेसेस के पार्ट आते हैं इसमें दो चीजें पॉसिबिलिटी होती है क्यों ये टफनेस है। पहली बात तो वी आर वेरी नार्सिस्टिक। नार्सिस्टिक का मतलब क्या होता है? द पर्सन हु लव्स हिमसेल्फ और हरसेल्फ, द पर्सन हु इज सेल्फ ऑब्सेस्ड। मेरे अंदर तो कोई वीकनेस ही नहीं है। सच टाइप ऑफ पीपल आर कॉल्ड हमेशा नार्सिस्टिक। इसीलिए अपनी वीकनेस को ढूंढना थोड़ा सा ट्रिकी पड़ जाता है। दूसरा, अगर यदि आपने कुछ चीज ऐसी बोल दिया अपने बारे में, बहुत ज्यादा नेगेटिव बोला, तो इट मे क्रिएट अ नेगेटिव परसेप्शन अबाउट योरसेल्फ, राइट, इन फ्रंट ऑफ रिक्रूटर और हायरिंग मैनेजर। इसीलिए वीकनेस को एक्सप्रेस करना इट इज क्वाइट चैलेंजिंग। पहली बात तो कई लोगों की हैबिट होती है कि मैं, मेरे अंदर तो कोई वीकनेस है ही नहीं, आई एम द परफेक्ट वन। तो ये सच टाइप ऑफ पीपल आर कॉल्ड नार्सिस्टिक। यू मे राइट डाउन दिस वर्ड, लिख लो, स्क्रीनशॉट भी ले लो, ठीक है, अच्छा वर्ड है नार्सिस्टिक। ओके। दूसरा, आपको डर लगता है कि अगर मैंने कुछ ऐसी चीज बोल दिया, बहुत गलत बोला, तो हो सकता है मेरा जो इमेज है वो ही नेगेटिव हो जाए। इन दैट केस वी हैव टू फॉलो द कॉमन पाथ, वी हैव टू प्ले द सेफ, जो रास्ता ऐसा हो जिसमें हमारे पास कोई भी प्रॉब्लम ना हो। क्या होगी वीकनेस, इस पर हम लोग डिस्कशन करते हैं। पहली बात तो जो हम लोगों ने स्ट्रेंथ के ऊपर बात करी थी, इफ वी क्लासिफाइड स्ट्रेंथ इन टू पार्ट, द फर्स्ट वन इज रिलेटेड टू योर इंटेलेक्ट एंड सेकंड वन इज रिलेटेड टू योर इमोशंस। भूल के भी कभी भी अपनी वीकनेस, इंटेलेक्ट स्ट्रेंथ वाला जो पार्ट है उसके अंदर से कोई भी पॉइंट ऐसा पिक मत करना विच इज रिलेटेड टू योर वीकनेस। व्हाट डज इट मीन? कभी ये नहीं बोलना कि आई एम नॉट गुड इन नंबर्स, ऐसी चीजें कभी मत बोलना, क्योंकि चाहे आप सेल्स में हो, मार्केटिंग में हो, एचआर के अंदर भी हो, राइट, उनको ये सब चीजें अच्छी नहीं लगती कि आपको नॉर्मल मैथमेटिकल कैलकुलेशन नहीं आती, बिकॉज यू आर एक्सपोजिंग योरसेल्फ। आप अपनी ऐसी कमी को एक्सपोज कर रहे हो। इन दैट केस हायरिंग मैनेजर, राइट, फील अनकंफर्टेबल टू प्रोसेस योर एप्लीकेशन। वो फील नहीं करेगा बिकॉज ही और शी ऑलरेडी क्रिएटेड द इमेज कि यार इसकी एप्टीट्यूड अच्छा है नहीं, कल को इसको एक्सेल में कुछ फॉर्मूला लगाने को दिया, वहां पे अटक जाएगा, प्रॉब्लम क्रिएट करेगा। इट्स बेटर कि दूसरे ऑप्शंस को देखो। दैट्स आई एम टेलिंग यू, वॉट एवर वर्ड यू आर स्पीकिंग, यू हैव टू बी वेरी कॉन्शियस। इस बात को बिल्कुल आपको सेफ होते होते चलना है। जो जो चीजें मैं आपको बताता जा रहा हूं, कभी भी whenever you are speaking about your weaknesses, never incorporate any of your intellect personality. इंटेलेक्ट पर्सनैलिटी को सिर्फ और सिर्फ आपको स्ट्रेंथ्स के लिए ही यूज करना है। लेट मी टेक एग्जांपल, इंटेलेक्ट को एक बार दिखा देता हूं। दीज आर योर इंटेलेक्ट कॉग्निटिव स्ट्रेंथ्स, फोकस, क्विक लर्नर, एनालिटिकल, डिसीजन मेकिंग, अटेंशन टू डिटेल। ऐसे नहीं बोल सकते कि आई कांट टेक क्विक डिसीजंस, वो मेरी वीकनेस है। कभी भी इंटेलेक्ट वाले पार्ट को नहीं लेना। हम लोग इमोशंस की जो हमारी पार्ट आ जाता है, इफ यू क्लासिफाइड वीकनेसेस इन टू पार्ट, इंटेलेक्ट हो गया और दूसरा कौन सा हो जाता है, इमोशंस वाला। इंटेलेक्ट में मैंने कोई भी आपकी, आई हैव नेवर टेकन अ सिंगल वीकनेस इन टर्म्स ऑफ योर एप्टीट्यूड वाला कॉग्निटिव का। सिर्फ और सिर्फ इमोशंस की जो पार्ट है उसी को हम लोग लेने वाले हैं, बिकॉज वो एक बार इमेज बन गया, इन दैट केस थिंग्स वुड बी क्वाइट चैलेंजिंग। ओके, अब आती है एक स्लाइड हम लोग मिस कर गए थे, ये वाला स्लाइड है, पहले मैं आपको बता देता हूं कि जब भी whenever you are trying to speak your weakness वाला part, right, avoid these three things. Never showcase any of your illegal activities what you have performed. छोटी से छोटी चीज भी हो, ठीक है, वो भी आपको कभी नहीं बतानी है। पीपल जनरली स्पीक अप कि सर मेरे को रेड लाइट पे मैं गाड़ी तेज चलाता हूँ, या फिर ये मेरी वीकनेस है, माय पेरेंट्स आस्क मी टू कंट्रोल माय स्पीड एंड ऑल दीज थिंग्स, बट ऑल दीज थिंग्स आई कांट हेल्प। अब ये सब चीजें आप बताते जा रहे हो, तो व्हाट एग्जैक्टली यू आर डूइंग, यू आर डिगिंग योर ओन ग्रेव। सर इससे क्या फर्क पड़ता है, मैं हेलमेट लगाऊं ना लगाऊं, कंपनी को क्या फर्क पड़ता है? नो, इट शोज योर कैजुअल नेचर। सर इतना सोचते हैं हम लोगों को, तो इसी लेवल का सोचना है, बिकॉज हम तो ये सोचेंगे कि जो हायरिंग मैनेजर और जो रिक्रूटर बैठा हुआ है, राइट, वो आपका सिलेक्शन आपको प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के लिए कर रहा है। इस लेवल के अगर आप सिंसियरिटी से आपके दोगे, तो आपकी हमेशा मोर देन 99% एक्यूरेट आपकी प्रोबेबिलिटी रहेगी टू गेट सेलेक्टेड, बिकॉज आप चीजों को बहुत सीरियसली ले रहे हो। और जितनी चीजों को आप सीरियसली लोगे, तो आप कभी भी अपने अंदर ऐसी चीज नहीं सोचोगे। यू ऑलवेज, राइट, क्वेश्चन योरसेल्फ एंड गिव आंसर टू योरसेल्फ कि मैं ऐसी चीजें बोलूंगा तो व्हाट टाइप ऑफ ओपिनियन, व्हाट टाइप ऑफ इमेज रिक्रूटर क्रिएट्स। कितने देर का इंटरव्यू होता है? इट गोज फॉर 30 to 45 to 1 hour। इतनी देर में इफ यू स्पीक एनीथिंग रॉन्ग, थिंग्स वुड बी एक्सट्रीमली चैलेंजिंग टू चेंज योर परसेप्शन, टू चेंज हिज परसेप्शन अबाउट योरसेल्फ। परसेप्शन चेंज नहीं होगा, इसीलिए यू हैव टू बी वेरी सेफ। कैरेक्टर के ऊपर हम लोग बात करें, यस, ये बोला जाता है बिकॉज इन इंडिया खास करके जो स्मोकिंग एंड ड्रिंकिंग है, इट इज अ टैबू। कभी भी आपसे बातचीत करें कि डू यू स्मोक, इन दैट केस, ठीक है, अवॉइड करो। अब बात आती है कि सर मैं तो करता हूं, इन दैट केस पहली बात तो
एक वर्ड आता है, जैसे कई लोग बोलते हैं कि अपनी वीकनेसेस की बारे बात बोलते हैं, आई एम अ चेन स्मोकर, दिस इज द बैड हैबिट। वैसे तो स्मोकिंग ड्रिंकिंग सारी ही बैड हैबिट है, लेकिन अगर आप चेन स्मोकिंग की चीजों को बोलते हो वो तो बहुत ज्यादा वीकनेस वाला पार्ट आ गया। तो ड्रिंकिंग स्मोकिंग ऐसी चीजों को कभी भी अपनी वीकनेस के अंदर शोकेस नहीं करना है। इफ यू डू इट, ठीक है, वीकनेसेस और चीजें बताने की, तो कभी भी इन चीजों को मत करो, बिकॉज ये सब चीजें क्या करते हैं, पीपल मेक देयर ओपिनियन। आई एम नॉट अगेंस्ट ऑफ सच टाइप ऑफ हैबिट्स, ऑब्वियसली हेल्थ के लिए इंजूरियस है, लेकिन आप किसी के ऊपर कैरेक्टर के ऊपर ये वाली बात नहीं कर सकते इफ पर्सन इज स्मोकिंग, इफ ही और शी इज ड्रिंकिंग। लेकिन क्या करें कि जब आपको चीजें सेफ खेलनी है, सो डोंट इंक्लूड दीज थिंग्स इन योर वीकनेसेस। थर्ड पॉइंट आता है इनसेंसिटिविटी, इट इज अ बिग नो। इफ यू आर अपोजिंग एनी कम्युनिटी, इफ यू आर अपोजिंग एनी रिलीजन, कास्ट, जेंडर को लेके आप ये सब चीजें कर रहे हैं, ठीक है, भूल के भी इन सब चीजों के ऊपर ना तो आपको डिस्कशन करना है, नीदर यू शुड मेंशन अबाउट द इनसेंसिटिविटी। सपोज इफ यू आर अपोजिंग, होता क्या है कि यू आर गिविंग योर इंटरव्यू, आप इंटरव्यू दे रहे हो और हायरिंग मैनेजर ही और शी वोंट आस्क कि आप अपनी स्ट्रेंथ और वीकनेसेस क्या बताओगे, ही और शी सिंपली आस्क, सर ओके व्हाट इज योर ओपिनियन अबाउट एलजीबीटी कम्युनिटी, एलजीबीटी कम्युनिटी के बारे में आपकी ओपिनियन क्या है। अब वहां पे अब आपने बोला कि सर आई एम अगेंस्ट एलजीबीटी कम्युनिटी, राइट, इट इज अगेंस्ट नेचर, ये लोग सोसाइटी को खराब कर रहे हैं, हु आर यू टू गिव ओपिनियन। सुप्रीम कोर्ट ने इन सब चीजों को अब तो बोल दिया, उसके बाद में अल्टीमेटली क्या कर रहे हो, यू आर एक्सपोजिंग योरसेल्फ, आप अपने आप को एक्सपोज कर रहे हो, दैट इज योर ओपिनियन दैट यू डोंट सपोर्ट एलजीबीटी कम्युनिटी, इन सब चीजों को। या फिर आप बात करो कि किसी माइनॉरिटी की बात कर लो, या फिर आप किसी पर्टिकुलर कास्ट की बात कर लो, डोंट यूज दिस थिंग। वो इंटरव्यूअर आपको ट्रैप में लाने की कोशिश करेगा, ही और शी वोंट आस्क दिस क्वेश्चन। दैट्स आई एम टेलिंग यू, कीप योरसेल्फ असाइड विद दीस टाइप ऑफ सेंसिटिव इश्यूज। आप खुद आज कंपनीज की बात करोगे, बड़ी बड़ी कॉर्पोरेट्स के अंदर तो एलजीबीटी के एक बेसिकली क्लब होते हैं, एंड यू हैव नो आइडिया, यू हैवंट रेड द कंपनी कल्चर, आपने पढ़ा नहीं कि कंपनी तो फुल एलजीबीटी को सपोर्ट करती है, they are not discriminating on the person of their in a particular orientation towards sex। अब ये सब चीजें क्या होंगी आपके लिए, what exactly you did, you dug your own grave। और वहीं पे क्या होगा, एचआर वहीं से आपको लगेगा कि यार how did I get rejected, मैं रिजेक्ट हो कैसे गया, सब कुछ बढ़िया चला। ये सब छोटी छोटी चीजें होती हैं जो आपकी इमेज बनाती हैं। सो दीज 3 थिंग्स यू शुड ऑलवेज कंसीडर बिफोर गिविंग योर वीकनेस वाला पॉइंट, राइट। नेवर इंक्लूड एनी इलीगल एक्टिविटीज, छोटी से छोटी चीज, आपका चालान कट गया ट्रैफिक पुलिस ने, आप हर दूसरे तीसरे दिन आप रेड लाइट को क्रॉस करते हो, यू डू रैश ड्राइविंग, डोंट स्पीक। हमें सेफ खेलना है वीकनेस के अंदर, वॉट एवर यू आर डूइंग, ठीक है। पहली बात तो गाड़ी चलाने से कंपनी को फर्क नहीं पड़ता, ठीक है, आपके चालान कटते, आप हेलमेट पहनो या ना पहनो, लेकिन कहीं ना कहीं इट शोज योर कैजुअल नेचर। आप अपनी जॉब के अंदर भी वो चीज करोगे, सो इट्स बेटर है इन सब चीजों को पहली बात तो आपको अपनी वीकनेसेस के अंदर मेंशन करना ही नहीं है, राइट। एनी हैबिट ऑफ स्मोकिंग और ड्रिंकिंग, इसको अवॉइड करना है। इनसेंसिटिविटी, आई ऑलरेडी कवर्ड दीज टॉपिक्स, इनको कभी भी आपको अपनी वीकनेस के अंदर नहीं लेना है। सो द फर्स्ट थिंग वी डिस्कस दैट नेवर इंक्लूड एनी ऑफ योर इंटेलेक्ट वीकनेस। इंटेलेक्चुअल जो वीकनेस वाला पॉइंट है उसको कभी भी आपको कभी भी इनकॉर्पोरेट नहीं करना इन टर्म्स ऑफ योर वीकनेसेस। कभी भी आपको जो वीकनेस बोलनी है, हमेशा आप ऐसी वीकनेस बोलो विच वोंट अफेक्ट कंपनी कल्चर और जिस प्रोसेस और जिस जॉब के लिए आप अप्लाई कर रहे हो। व्हाट आई सेड, नेवर एवर मेंशन एनी वीकनेस विच अफेक्ट्स योर कंपनीज प्रोफाइल और योर ओन जॉब ओपनिंग जिसके लिए आप अप्लाई कर रहे हो। व्हाट आई सेड, कोई भी ऐसी वीकनेस नहीं बोलनी जो आप जिस इमीडिएट रोल के लिए जा रहे हो उसमें वो इंपैक्ट करे। मैं बार बार इस चीज को इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि रिक्रूटर का ध्यान सिर्फ और सिर्फ ही और शी वांट्स टू गेट द क्लोजर, उसको क्लोजर करना है। आप ऐसी चीज भूल के भी मत बोलना जो उस प्रोफाइल में आपकी वीकनेस उसके लिए कोई ना कोई प्रॉब्लम क्रिएट करे। आंसर मैं आपको सारे दूंगा, बस अभी आप ये चीज सुनते चले जाओ। व्हाट डज इट मीन, सपोज यू आर अप्लाइंग फॉर सेल्स रोल, आप सेल्स और मार्केटिंग के रोल के लिए अप्लाई कर रहे हो एंड यू मेंशन दैट आई एम एन इंट्रोवर्ट एंड आई एम अ शाय पर्सन, राइट। कुछ नहीं होने वाला, फॉरगेट अबाउट द कॉल, कोई कॉल नहीं आने वाली। रीजन बीइंग आपने खुद ने ही पहली चीज को गलत बोल दिया। क्यों सर, आपने तो बताया इंट्रोवर्ट, इस शाइनेस को आप वीकनेस बोल सकते हो, ऑब्वियस बात है इमोशंस में आती है, लेकिन इट इज डायरेक्टली हैम्परिंग द रोल इन विच यू हैव अप्लाइड। तो कभी भी जो आप अपनी वीकनेस बोलो, प्रिपेयर कर लेना जितनी भी वीकनेस है, जब भी आप इंटरव्यू के लिए जाओ, नाइट बिफोर द इंटरव्यू आप पूरे पॉइंट सोच लेना कि ये वाला जो ओपनिंग है ये इससे रिलेटेड है, तब मैं इस चीज को, ये वाली चीज नहीं बोलूंगा बिकॉज इट इज डायरेक्टली हिंडरिंग, इट इज डायरेक्टली अफेक्टिंग द जॉब ओपनिंग। ओनली टॉक अबाउट इमोशनल वीकनेसेस एज वी ऑलरेडी डिस्कस्ड। अब देखो, हम लोगों को जो वीकनेस बतानी है
ये जो वीकनेस है, ठीक है, इनके ऊपर आप अपनी तैयारी कर लो. द फर्स्ट वन इज आई एम एन इंट्रोवर्ट एंड शाय. बट अगर मैं सेल्स मार्केटिंग या फिर मैं एक ऐसे रोल पे कर रहा हूं जहां पे मैं फ्रंट लाइन हूं, राइट, आई हैव अ क्लाइंट फेसिंग रोल, मुझे क्लाइंट से इंटरेक्ट करना पड़ता है, आई हैव टू ट्रैवल ओवरसीज, ठीक है, मैं लोगों से कम्युनिकेट कर रहा हूं. इन दैट केस आई शुड बी एक्सट्रोवर्ट. If you are into the finance, if you are into the accounting profession, or if you say I'm an introvert person, good, चल जाएगा. लेकिन थर्ड स्टेप और होगा, वो हम लोग बाद में देखेंगे. फिर I am weak in life discipline. I am weak in life discipline. What does it mean? I can work for 12 hours, 13 hours, 14 hours, right? I need my laptop. I work for 15 or 16 hours. अब ये सब चीजें है ना, कंपनी के लिए तो बेनिफिशियल ही है. ये आप करोगे, आपकी हेल्थ खराब होती है, कुछ खराब होता है, कंपनी नेवर केयर्स, राइट, दे ऑलवेज बिलीव इन प्रॉफिट्स. तो आप इन वीकनेस को बोलोगे ना, एचआर लव्स टू लिसन. अच्छा चलो सही कैंडिडेट आया है, राइट, इनको कोई मतलब ही नहीं, वीकेंड पे भी लगाएंगे, वो सब चीजें करेंगे. लेकिन अल्टीमेटली आप क्या कर रहे हो, यू आर इंक्रीजिंग योर पॉसिबिलिटी ऑफ गेटिंग सिलेक्शन. अब ये वीकनेस है, कोई भी इस पे इंपैक्ट नहीं पड़ने वाला आपके इंटरव्यू के ऊपर, बिकॉज यू आर प्लेइंग सेफ पूरा. फिर डाइट कंट्रोल. आपने कितनी भी कोशिश करी, यू वांट टू पुट ऑफ योर वेट, आप अपना वेट कम करना चाहते हो पूरा का पूरा, यू आर ट्राइंग टू फॉलो द स्ट्रिक्ट हेल्दी डाइट, बट थिंग्स नेवर वर्क. रीजन बीइंग यू हैव एन एक्सट्रीम क्रेविंग फॉर फूड, राइट, यू हैव अ स्वीट टूथ, आप मीठे के बिना नहीं रह सकते, सो यू कांट कंट्रोल योर डाइट. अब इससे कंपनी को क्या फर्क पड़ता है, कुछ नहीं फर्क पड़ता, आप खाओ ना, उनको कोई फर्क नहीं पड़ने वाला. सो ऑल दीज थिंग्स आर कंसीडर्ड एज योर वीकनेस. एब्सोल्युटली यस. अब यहीं पे लोग गलती क्या करते हैं, वो लोग सोचते हैं ये तो छोटी सी वीकनेस है. अरे वीकनेस छोटी ही बतानी है. दिस वीकनेस नेवर, राइट, गेट्स यू इनटू द ट्रबल. डाइट कंट्रोल पड़ गया, पूरा हेल्दी रूटीन, राइट. आई ऑलवेज आ गया दिसंबर एंड में, लॉट्स ऑफ पीपल टेक जिम मेंबरशिप, दे गो फॉर 1 वीक 2 वीक, 14th और 15th जनवरी तक जितने भी रेजोल्यूशंस बनाए हुए होते हैं सारे के सारे खत्म हो जाते हैं. Research, go to the Google and you will find it. Within a second week of January, all the resolutions what people have made, right, all these things got diminished within 2 weeks. 14th और 15th January तक खत्म हो जाते हैं. Remember one thing, आप लोगों को लास्ट वेबिनार में आई शेयर्ड वन ट्रैकर, कम्युनिकेशन स्किल्स ट्रैकर मैंने आप लोगों के साथ शेयर किया था. व्हाई डिड आई शेयर यू? क्योंकि हमारे पास दिसंबर का पूरा मंथ है, राइट, कि आपको अपने कंटिन्यू स्किल्स को कैसे इंप्रूव करना है. ग्रुप के अंदर पड़ा हुआ है, एक्सेल को वहां से डाउनलोड कर लेना. और जो लोग एनरोल मेंबर्स पूरे के पूरे, आप लोगों को तो ईमेल पे भी आया होगा आप लोगों के पास ईमेल ट्रैकर. आई होप यू स्टार्टेड वर्किंग अपॉन इट. उसमें क्या हो गया, दिसंबर तक का 31 दिसंबर तक का आपके पास पूरा का पूरा टाइम है. रीजन बीइंग व्हाट एग्जैक्टली यू आर डूइंग, यू आर एक्लेमेटाइजिंग योरसेल्फ, यू आर प्रिपेयरिंग फॉर द न्यू ईयर. अब लोग क्या करते हैं, दे स्टार्ट मेकिंग रेजोल्यूशन फॉर 1st of January. 1st of January से वो लोग अपना रेजोल्यूशन बनाना शुरू करते हैं कि ओके हम लोग 31st तक तो कर लेंगे, हिंदी में बातचीत कर लेंगे या फिर कर लेंगे, बट फ्रॉम 1st of January आई वुड स्टार्ट स्पीकिंग इंग्लिश. दैट डे विल नेवर कम इन योर लाइफ. जो चीजें आप इतने सालों से ठीक नहीं कर पाए, हाउ इट विल चेंज विद इन 24 आवर्स कि 1st of January को करोगे. सो यू हैव टू प्रिपेयर योरसेल्फ बिफोर हैंड. एंड ऑल दीज थिंग्स व्हाट आई एम टीचिंग यू राइट नाउ, राइट, आई प्रैक्टिस्ड अ लॉट. Let me take my example, right? I had a bad habit of consuming coffee and tea, right? I used to consume more than 7 to 8 cup of coffee, and that too black coffee. अब I made a plan कि मुझे जनवरी के अंदर पूरा अपना इसमें नेक्स्ट ईयर से मुझे पूरा का पूरा अपना कॉफी छोड़ना है. And that moment of time, right, I realized that why shouldn't I start in the month of December only? और ये सब चीजें क्या हुआ, because all these things are tried and tested. आप 1st of January को इफ यू मेड अप योर प्लान कि मैं उन सब चीजों को अपना रेजोल्यूशन बनाऊंगा या बनाऊंगी, दैट डे विल नेवर कम इन योर लाइफ. सो व्हाट आई डिड, आई स्टार्टेड ऑन 8th of December 2017. 8th of December 2017 आई थॉट कि नेक्स्ट ईयर से जनवरी 1st of January से आई वुड स्टॉप कंज्यूमिंग अपना टी और कॉफी. टी तो वैसे ही था नहीं था, कॉफी का जो ब्लैक कॉफी है, आई वुड स्टॉप कंज्यूमिंग ब्लैक कॉफी बिकॉज आई यूज्ड टू कंज्यूम लॉट्स ऑफ कैफीन. अब इतने वेबिनार चलते थे कंटिन्यू एट दैट मोमेंट ऑफ टाइम, राइट, आई नीडेड इट. नीड क्या हुआ, धीरे धीरे आई बिकेम एडिक्टिव. अब 7th of December midnight आई थॉट एंड आई लेफ्ट इट. बाय द एंड ऑफ 31st of December आई वाज इनटू द हैबिट ऑफ नॉट कंज्यूमिंग ऑल दीज थिंग्स. आई एम यूज्ड टू, राइट, सारी की सारी चीज हो गई. और 1st of January को पता ही नहीं चला कि ऐसा कोई रेजोल्यूशन चल रहा है. दैट वाज द मोमेंट, दैट वाज इन 2017 एंड राइट नाउ इन 2020 आई हैवंट कंज्यूम्ड कॉफी. तो ये जो प्रोसेस होता है ना, जो आप सोचते हो कि 1st of January से मैं चीजें शुरू करूंगा या करूंगी, इट इज नॉट पॉसिबल, प्रैक्टिकली इम्पॉसिबल है, बिकॉज समटाइम्स यू ब्रेक.
और जब आपका 7 और 8 जनवरी को जब एक बार ब्रेक लगता है, वी गेट डिमोटिवेटेड, अब तो टूट गया यार, चलो छोड़ो, नेक्स्ट मंथ से फेब से शुरू करेंगे, 14-15 जन तक हम लोग वापस अपने ट्रैक पे आ जाते हैं. दैट वाज द मेन रीजन कि आपको ईमेल किया गया था वो पूरा का पूरा ट्रैकर. आई होप यू स्टार्टेड वर्किंग, फिल अप ऑल द डिटेल्स, यू नो हाउ मेनी मिनट्स यू आर स्पीकिंग इन इंग्लिश, पूरे का पूरा मैंने टॉपिक बताया था. द पीपल हु मिस दैट सेशन, आपके रिकॉर्डिंग आ गया होगा, उसको वापस सुनना, मेल से आप अपने उसको फैच करना पूरे की पूरे ट्रैकर को, स्टार्ट फिलिंग ऑल द डिटेल्स. पूरा बाय दी स्टार्टिंग ऑफ 1 जनवरी आप एक लेवल पे आ चुके होगे. और जो हम लोगों ने कैलकुलेशन बैठाई थी, आई थिंक 23rd और 24th ऑफ नवंबर आई टुक सैटरडे सेशन, तब मैंने कैलकुलेट किया था वी हैड ऑलमोस्ट 40 डेज, 37, 38, 39, 40 डेज थे हमारे पास. 40 डेज को अगर मैंने कैलकुलेट किया था तो बाय द एंड ऑफ 31st ऑफ दिसंबर यू वुड हैव बीन स्पीकिंग फॉर एन आवर. 60 मिनट्स का आपका बैठ रहा था उसके हिसाब से टोटल, इफ आई एम नॉट रॉन्ग. 60 मिनट का कॉन्वर्सेशन आपका 1 जनवरी से शुरू हो जाएगा विद योरसेल्फ ओनली. डू यू नीड एनी पार्टनर? एब्सोल्युटली नॉट, कोई पार्टनर की जरूरत नहीं है. लेट्स कम टू द टॉपिक. जो हम लोग बात कर रहे थे कि आपको जो भी चीजें करनी है, इंट्रोवर्ट और शाइनेस, ये सब चीजें आप कहाँ पे बोलोगे? ये सिर्फ चल सकती हैं अगर आप सेल्स में हो और उसमें अकाउंटिंग के अंदर हो, फाइनेंस प्रोफेशन में हो, जहां पे यू डोंट हैव एनी क्लाइंट फेसिंग रोल. दो मैं आपको नहीं बोलूंगा कि आपको ये सब इंट्रोवर्ट और शाइन रहना है, लेकिन हाँ इस वीकनेस को आप लिख सकते हो क्योंकि इट वोंट हार्म कंपनी के ऊपर, कोई प्रॉफिट्स के अंदर, रेवेन्यू के अंदर कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा. आ जाता है वीक इन लाइफ डिसिप्लिन, वी कवर्ड, पूरा हेल्थ डाइट कंट्रोल हो गया, पूरा हेल्थ रूटीन हो गया. एडिक्शन ऑफ गेमिंग, यू प्ले पबजी, ठीक है, कंपनी नेवर केयर्स. आप खेल रहे हो, उनको कोई फर्क नहीं पड़ता, घर पे एक्सबॉक्स लगा रखा है, प्ले स्टेशन लगा रखा है, कुछ भी खेलो, राइट. यहाँ पे आई डिडंट मेंशन सोशल मीडिया एडिक्शन. सोशल मीडिया एडिक्शन को मैंने क्यों यूज नहीं किया? बिकॉज पीपल जनरली गेट एक्सेस इन देयर वर्क प्लेस पे, फिर वो फेसबुक पे इन सब पे लग जाते हैं, तो वो चीज नेगेटिव है. HR गेट्स टू नो कि यार ये टाइम खराब करने वाला बंदा है, इट्स बेटर. अब गेम कोई नहीं खेलता, ठीक है, अगर आप वो गेम ताश वाला उन सब की बातें नहीं कर रहा जो जनरली जोक आते हैं कि SBI के और ये सब लोग खेलते रहते हैं. आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट दीज थिंग्स, बट जनरली जो गेमिंग होती है, ठीक है, वो आप अपने घर पे खेलते हो. बट सोशल मीडिया आई डिडंट मेंशन डेलिबरेटली, इसको मैंने जानबूझ के मेंशन नहीं किया क्योंकि सोशल मीडिया को मेंशन करते ही इट गिव्स अ रॉन्ग सिग्नल टू द HR दैट पर्सन वेस्ट टाइम, पर्सन वेस्ट रिसोर्सेज ऑफ अ कंपनी. इंटरनेट इन सब का मिसयूज कर रहा है, सो बेटर है सिर्फ आप गेम पे जाओ. ये जितनी 5 चीजें हैं, ये पांचों की पांचों आपको नहीं बोलनी. whatever you feel like, whatever your skill set you can resonate with, go for it. आप जिस टॉपिक पे आओ उसको आप लेके बैठ जाओ और उस पे आप आराम से इस पॉइंट को बोलो कि ये मेरी वीकनेसेस है. अब बात आती है जहां पे सबसे ज्यादा गलती होना शुरू होती है. व्हाट आर द स्ट्रक्चर्स? फर्स्ट इज वी हैव टू स्पीक अबाउट द स्ट्रेंथ्स. There are 2 strengths. The first one is related to cognitive and second one is related to emotions. कोई 2 या 3 पिक कर लो. Don't use these words कि मेरी cognitive strength ये है और मेरी emotional strength ऐसी है. कुछ नहीं बोलना, बस आप तो 2 या 3 दोस्त में से ले लो, दोस्त में से ले लो. Your job is done. Then we talk about our weaknesses. Weakness वाला पार्ट आ गया. इंटेलेक्ट वीकनेस कुछ नहीं बोलनी. वी विल बी टॉकिंग अबाउट आर इमोशनल वीकनेसेस ओनली, जो आपके सामने लिखी पड़ी है. अब बात आती है तुरंत बाद, right? You have to give the plan of improving your weakness. How will you fix it? People generally avoid it. आपको इन सब चीजों के ऊपर ये भी बताना है कि I have been working upon all these things. Just take example. Suppose you are applying for accounting profile and by nature you are an introvert person. जैसे ही आपने बोला कि my weakness is I am an introvert person, I am a bit shy. तुरंत बोलना है, but for 6 months I have been working upon this weakness, right? I am trying to fix it. I have made a couple of plans. I have joined Toastmasters. I have enrolled in this course, or I had just made commitment to myself that every day I have to speak to one stranger daily. Ultimately, what exactly you showed, right? Your all the setbacks, all of the shortcomings जो भी आपकी रही हैं, सारी की सारी जिसके चक्कर में आपको लॉस हुआ, you know all these things. You assessed yourself very well and right now you are trying to fix it. People generally speak about their weaknesses, but वहीं पे आपको अपना सेंटेंस एंड नहीं करना है. आप मुझे, मैंने इंट्रोवर्ट और शाइनेस के बारे में बोला, तो सर क्या ये मुझे अपनी हेल्थ के ऊपर भी बोलना है? यस. इट शोज हाउ मच सिंसियर यू आर टुवर्ड्स योर लाइफ. और ये शो करता है कि हाँ आपको अपनी वीकनेस भी पता है. दूसरा, यू आर वर्किंग अपॉन इट बिकॉज यू आर ट्राइंग टू फिक्स इट. अब आपका सपोज कीजिए बात करते हैं कि आपका डेली रूटीन की बात आ गई. आपका जो लाइफ डिसिप्लिन है, राइट, यू जनरली गो टू बेड अराउंड 2:30 और 3 इन द मॉर्निंग.
तो वहां पे आप बोल सकते हो फॉर 6 months और फॉर 2 months, राइट, आई हैव स्टार्टेड मेकिंग माई डिसिप्लिन लाइफस्टाइल. आई जनरली आई ट्राई टू गो टू बेड अराउंड 9:30 or 10. बिफोर गोइंग टू बेड आई रीड बुक्स भी वही बतानी है जो इंडस्ट्री से रिलेटेड हो. Because you are what exactly you are doing? You are simply, right, spreading the complete web. हर चीज पे वॉट एवर सेंटेंस यू आर स्पीकिंग, तुरंत आपने बोला, राइट, आई एम टू द हैबिट ऑफ रीडिंग बुक्स, राइट, बिफोर गोइंग टू बेड आई स्टार्टेड रीडिंग बुक्स. तुरंत क्वेश्चन आ सकता है, व्हाट बुक डू यू रीड और विच बुक यू हैव बीन रीडिंग नाउ डेज. तुरंत वही बुक बोलो जो उस जॉब से या फिर उस इंडस्ट्री से रिलेटेड हो. बैंक, आपका इंटरव्यू कहां पे चले गया, द थिंग व्हाट यू वांट हिम टू आस्क, जो चीज आप पूछना चाहते थे. तो इस तरीके से ही इंटरव्यू पूरा का पूरा, इंटरव्यू को खुद को पता नहीं चलेगा, राइट, दैट ही और शी गॉट इनटू द सिंपली ट्रैप. वो ट्रैप में आ जाएंगे. और यही तरीका होता है क्योंकि उन लोगों को पता है आपने ही अपना रेज्यूमे भेजा है, राइट. 7 to 8 years का एक्सपीरियंस वाले कितने भी लोग आए होंगे, उनका भी वही चीज होगी. दे वांट समथिंग स्पेशल और उसी को ही पिक करते हैं. और जहां पे आपके पास चांस मिलता है टू शोकेस योर नॉलेज और स्किल सेट, राइट, नेवर मिस दिस चांस. तो यार पार्ट आ गया. उसके बाद आपने बोला कि मैं रात को 9 या 10 बजे के बाद, राइट, आई कंप्लीटली डिटैच माई सेल्फ टू ऑल द सोशल मीडिया एप्लीकेशन. मोबाइल को अपने एक साइड में रख देता हूँ, एरोप्लेन मोड पे रख देता हूँ. इट शो दैट यू आर वर्किंग अपॉन दिस पर्टिकुलर वीकनेस टू फिक्स इट. एडिक्शन ऑफ गेमिंग, ठीक है, आप बोल सकते हो कि जितने भी गेमिंग के पार्ट आते हैं ऑनलाइन वाले कि पहले आई हैवंट सब्सक्राइब एनी न्यू गेम फॉर 3 or 4 months. 3 से 4 महीने पहले मैंने कोई भी अभी ऑनलाइन गेम ना तो मैंने अपडेट करा है ना कुछ करा हुआ है. आई अनस्टॉल्ड ऑल द गेमिंग एप्लीकेशन, राइट. आई एम ट्राइंग टू फिक्स इट बट दिस इज वन ऑफ माई वीकनेसेस, राइट, विच आई फेल्ट. बस, और आपका काम हो गया. लेट मी चेक, समवन टाइप्ड हाउ टू नर्वसनेस एंड फियर इन इंटरव्यू. दीक्षित सिंह, आपके पास जो लेक्चर 52 आपने अटेंड नहीं किया होगा या फिर आपने अगर कोर्स अभी लास्ट वीक ही ज्वाइन किया है, इन दैट केस जब आपके पास इंटरव्यू प्रिपरेशन का पूरा पार्ट आएगा उसमें मैंने पूरा का पूरा डिटेल आपको बताया है. ठीक है, आप एक बार टीम से कोऑर्डिनेट करना, आपके पास वाला एक्सेस आ जाएगा. ओके, उसमें पूरी चीजें बताइए कि आप नर्वसनेस, आप इंटरव्यू छोड़ो यार, पब्लिक स्पीकिंग के ऊपर पूरा बताया. वो तो आपको मुझे लगता है लेक्चर 24 या 25 के अंदर ही है, राइट, विद इन 10 minutes. ठीक है, आपकी नर्वसनेस पूरी खत्म हो जाएगी. व्हाट आर द एक्सरसाइजेज आपको क्या करनी है, किस तरीके से कंटेंट क्रिएट करना है, एवरीथिंग इज कवर्ड. ओके, लेट मी ओपन. यस, वन थिंग. अब ये चीजें जो हम लोगों ने पहले, मैंने जब व्हेन वी स्टार्टेड दिस वेबिनार आई स्पोक अबाउट दिस थिंग कि यू आर अप्लाइंग फॉर अ सेल्स पोजीशन, ठीक है, और वहां पे आप मेंशन कर रहे हो यू आर एन इंट्रोवर्ट पर्सन, इट्स अ बिग नो. अब आप यहाँ पे मत बोलना कि सर मैं तो फिर मैंने अभी इस पे वर्क भी कर रहा हूँ. नो 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 नो, वीकनेस रिलेट करनी चाहिए जो आपके जॉब से कुछ भी उससे लेना देना ना हो. कभी भी आप ऐसा मत सोचो कि आप उससे लिंक करें और फिर आप बोलो कि आई एम ट्राइंग टू फिक्स इट. नो, थिंग्स वोंट हेल्प यू. यू आर अप्लाइंग फॉर सेल्स एंड मार्केटिंग. अब आप बोल सकते हो कि आई कांट कंट्रोल माई फूड हैबिट्स, दैट इज गुड. सेल्स मार्केटिंग में हो और आप खाने पीने का खा रहे हो, उनको कोई मतलब नहीं है. ठीक है, या फिर आप जिम विम ज्वाइन नहीं करते, कुछ भी नहीं करते, उनको मतलब नहीं है. दे ओनली बिलीव इन नंबर्स. लेकिन अगर आप शाय और इंट्रोवर्ट हो, इन दैट केस ऑल दीज थिंग्स मे अफेक्ट, राइट, कंपनीज रेवेन्यू. You are applying for finance role and said I am an introvert person, but for last month, ये यहाँ पे सही है, right? But for last 2 months I have been in the habit of talking to a stranger. Share your plan. Remember one thing, if you take my first class, मैंने आपको बताया था how you can improve your spoken English. वहाँ पे एक point था कि you have to talk to strangers daily. वो plan ही है आपका, ठीक है, वो आपका प्लान ही है. आई हैव एनरोल्ड इन दिस कोर्स. आप कोई कोर्स का नाम ले लो कि मैंने कोर्स ज्वाइन किया है जिससे मैं अपने आप को वर्क कर रहा हूँ. आई स्टार्टेड मेकिंग वीडियोस, ठीक है, आई हैव जॉइन टोस्ट मास्टर्स क्लब. ये सारी की सारी चीजें आप बोल सकते हो. ये ऑल दीज थिंग्स आर योर रोड मैप. ये आपका एक रोड मैप है जो आपको हेल्प करेगा इन ऑर्डर टू फिक्स योर वीकनेसेस. So this is one of the most important sessions what we have covered today. We talk about how to, what are the significances of strengths and weaknesses, right? Why recruiters, ask this question, right? How to answer these questions? What are the do's and don'ts? What things we should speak and we should avoid? Never include. First of all, अगर हम लोग, if we summarize, let me summarize it, ताकि पूरा आपको आइडिया लग जाए what we have discussed. स्ट्रेंथ एंड वीकनेसेस के ऊपर बात कर रहे थे, राइट? क्यों पूछा जाता है? बिकॉज रिक्रूटर्स एंड हायरिंग मैनेजर दे डोंट वांट टू डू एनी हार्ड वर्क, राइट? दे सिंपली थ्रो एन ओपन एंडेड क्वेश्चंस टुवर्ड्स यू नाउ, ताकि वो डिस्कशन को प्रोपोगेट कर सके, राइट? 3 से 5 का मतलब ऐसा नहीं होता कि यू हैव टू स्टिक ऑन नंबर्स कि मुझे 3 से 5 बोलनी है. इवन इफ यू स्पोक 2 or 3, दैट इज सफिशिएंट.
5 बोलने की भी जरूरत नहीं है। दूसरा, बहुत बड़ी आपको एक्सट्रीम रेंज पे नहीं खेलना है, एक्सट्रीम वीकनेस और एक्सट्रीम स्ट्रेंथ नहीं बतानी है कि वो डाइजेस्टेबल ही ना हो। आप ऐसी स्ट्रेंथ बताओ विच इज नॉट डाइजेस्टेबल, राइट। एवरी मंथ आई डू चैरिटी ऑफ 1 लाख बिकॉज मैं फिलेंथ्रोपी मेरी एक स्ट्रेंथ है, कुछ स्ट्रेंथ नहीं है, राइट। ऑलवेज टॉक रीजनेबल इफ यू हैवंट डन समथिंग सब्सटेंशियल। ओके, रेंज पे खेलो 6 to 7 के अंदर। दूसरा, कॉन्ट्रडिक्शन नहीं होना चाहिए स्ट्रेंथ और वीकनेसेस के अंदर। एज आई टुक एग्जांपल कि आप हो अकाउंटिंग के अंदर और आप बोल रहे हो कि मेरा जो नंबर्स है वो मेरे वीक है। थिंग्स आर कॉन्ट्रडिक्टरी। हाउ टू फाइंड योर स्ट्रेंथ्स? विजुअलाइज योरसेल्फ एज अ लीडर ऑफ दैट पर्टिकुलर प्रोसेस इन विच यू आर अप्लाइंग फॉर अ जॉब। ठीक है, उसके बाद क्रिएट योर अथॉरिटी। अथॉरिटी आप कैसे बिल्ड करोगे? स्टार्ट मेकिंग वीडियोस ऑन अ कंटिन्यूअस बेसिस। स्ट्रेंथ्स, इंट्रोस्पेक्ट योरसेल्फ। ठीक है, आपके 2 स्ट्रेंथ को सेग्रीगेट करेंगे। इंटेलेक्ट के ऊपर आ जाएगा, लॉजिक के ऊपर आ जाएगा आपका, उसके ऊपर ये सारी की सारी स्ट्रेंथ है जो आपको कंटिन्यू बोलना है। नेवर मिस क्विक लर्नर, इसको तो आपको यूज करना है इस स्ट्रेंथ के ऊपर। ठीक है, अब उसके ऊपर वो आपसे स्टोरी पूछेगा, राइट। शो एनी इंसिडेंट वेयर यू हैव शोड दैट टाइप ऑफ स्ट्रेंथ दैट यू आर अ क्विक लर्नर। आप बोल सकते हो इन द लास्ट ऑर्गेनाइजेशन आई ज्वाइन, वहां पे दे इंट्रोड्यूस अ न्यू प्रोसेस या फिर दे ब्रॉट अ न्यू क्लाइंट. Client was extremely new, right? They had a different set of tools what they had been using, but I learned all these things with the efforts. I underwent training, right? Training, the time of training was around 30 or 60 days, but I learned all these things in a record time of 20 or 25 days. I saved resources. It shows that you are a quick learner. बस आपके पास कोई ना कोई स्टोरी होनी चाहिए. It shows your behavior, environment, interviews, techniques, right? यही पूछी जाती है. कोई ये नहीं पूछेगा कि आपकी हॉबीज स्ट्रेंथ बता दो और वीकनेसेस बता दो और फिर वो आगे बढ़ जाएगा. नो, दे सिंपली पिक ऑल दीज क्वेश्चंस फ्रॉम योर स्ट्रेंथ्स एंड वीकनेसेस ओनली. स्ट्रेंथ, इमोशंस वाली, टॉलरेंट, एम्पैथी, सेंसिटिविटी, फ्लेक्सिबिलिटी, पेशेंस, कोलैबोरेटिव, हार्ड वर्किंग, बैलेंस. आई गिव लॉट्स ऑफ एग्जांपल. इसके ऊपर स्टोरीज आपको सोचनी है. द मेन थिंग इज दैट चाहे वो आपकी इंटेलेक्ट हो या फिर आपकी इमोशंस हो, यू हैव टू क्रिएट द स्टोरीज बिहाइंड दैट. 2 स्ट्रेंथ सोच रहे हो, 2 के ऊपर आपकी सॉलिड स्टोरी होनी चाहिए. उस स्टोरी से ही आपका डिस्कशन आगे बढ़ेगा. वीकनेसेस थोड़ा टफ होता है क्योंकि वीकनेस जो होता है वो आपको रिजेक्शन की तरफ लेके जाता है और स्ट्रेंथ्स है वो आपकी प्रोबेबिलिटी ऑफ सिलेक्शन को बढ़ाता है. सो वी हैव टू प्ले सेफ. कोई भी चीज ऐसी नहीं बोलनी है जो आपको ट्रबल करे. इसीलिए वीकनेस सिंपल बोलो. कोई भी 3 चीजों का ध्यान रखना है. नेवर इंट्रोड्यूस योरसेल्फ इनटू एनी इलीगल एक्टिविटी, कैरेक्टर और इनसेंसिटिविटी के ऊपर कोई भी ऐसी चीजें नहीं बोलनी. अदरवाइज फॉरगेट अबाउट योर सिलेक्शन. अब आ जाती है आप लोगों का कि इमोशनल वीकनेस ही लेना है, इंटेलेक्ट वीकनेस के ऊपर कोई भी चीज नहीं लेनी है. दीज आर द वीकनेसेस व्हिच वी कैन इनकॉर्पोरेट, राइट. जब भी आपसे कोई पूछे इंट्रोवर्ट, लाइफ डिसिप्लिन, डाइट कंट्रोल, पुअर हेल्थ, एडिक्शन और गेमिंग, इट इज प्रीटी सिंपल. हाई फाई बोलने से अच्छा है सिंपल बोलो ताकि आप लोग ट्रैप में ना आओ. ऑल दीज आर कंसीडर्ड एज अ वीकनेस, एब्सोल्युटली यस. लेकिन वी मस्ट हैव अ प्लान टू फिक्स इट. और वो चीज आपको हमेशा इंटरव्यू में बोलनी है. Once you start speaking about your weakness, you must have ready your अपना कौन सा इसका fixing का plan है. How are you working, right? Or how much you have achieved so far within 2 months or within a week or last week, what you have done or what you have been doing. All these things. Prepare all these questions, right? Good. So let me take vocabulary of the day. That is aficionado. This word we would be discussing in next session. टेक स्क्रीनशॉट. इसका भी पूरा क्लास का जो आपको एक्सेस आएगा वो आ जाएगा आपको ट्यूसडे को आपके ईमेल के ऊपर. ओके, बट टिल देन आप लोग एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लो. एफिशिएनाडो, द वर्ड हियर इज एफिशिएनाडो. द वर्ड वुड बी डिस्कसिंग नेक्स्ट सेशन. What you have to write, you have to find out its meaning, synonyms and usage. The same thing what we did with the word. फ्लेगमेटिक के साथ जो आज हम लोगों ने डिस्कशन किया था, द सेम डिस्कशन वुड हैपन विद द वर्ड एफिशिएनाडो नेक्स्ट वीक. गुड. कोट ऑफ द डे, एनर्जी एंड परसिस्टेंट कॉन्कर ऑल थिंग्स. हु सेड? बेंजामिन फ्रैंकलिन. एब्सोल्युटली करेक्ट. व्हाटएवर थिंग्स हैपनिंग विद यू, राइट, इफ इट going against you, no need to worry. You have to be persistent. If you are making video, if you are trying to communicate, if you are making mistake, grammatical mistakes हो रही है, कुछ भी आ रहा है, be persistent. That's why I'm telling you, the people who are making videos, you are being given a wonderful opportunity, right, to get your videos audited here. इतनी अच्छी opportunities है आप लोगों के पास
जितनी भी ये बोनस क्लास चल रही है, बी कंसिस्टेंट, आप लोग वीडियोस बनाओ ताकि हम लोग यहाँ पे उनका ऑडिट भी कर सकें, बट इट इज ओनली फॉर दोज हु हैव बीन मेकिंग वीडियोस फॉर लॉन्ग टाइम। ऐसा नहीं आप एक वीडियो बनाओ फिर बोलोगे आप ऑडिट करो, राइट? आप लेक्चर्स देखो, पूरे के पूरे 10 से 15 वीडियोस बनाओ, आई कैन गारंटी यू वी विल टेक योर वीडियोस इन ऑडिटिंग। ओके, एक दो वीडियो में तो आपको पता ही नहीं चलेगा यार कि क्या क्या चीजें मैं गलती कर रहा हूँ या कर रही हूँ। इट्स बेटर पुटिंग इन लॉट्स ऑफ एफर्ट्स, लेकिन यू हैव टू बी परसिस्टेंट। जितने आपके पास लेक्चर्स आते रहे हैं, आई कैन गारंटी यू एवरीथिंग इज कवर्ड इन दीज 60 लेक्चर्स जो मंडे वेडनेसडे फ्राइडे को आपके ईमेल पे आते हैं। आपको बस उनके साथ साथ पढ़ते पढ़ते यू हैव टू इम्प्रोवाइज योरसेल्फ, यू हैव टू फाइंड आउट द प्लेसेस वेयर यू आर मेकिंग मिस्टेक्स। यहाँ पे मेरा ग्रामर हिल रहा है, यहाँ पे मेरा आई कॉन्टेक्ट ऐसा हो रहा है, यहाँ पे मेरी बॉडी लैंग्वेज खराब जा रही है। डू इट ऑन अ रेगुलर बेसिस, एनालाइज योरसेल्फ, और उसके बाद तो लाइव क्लास में हम लोग डिस्कशन करेंगे। नाउ आई एम ओपन टू टेक क्वेश्चंस। इफ यू हैव एनी क्वेरी यू कुड आस्क मी irrespective of anything. How to start video on which topic? Rahul, if you haven't started, take topic of your, first of all, shoot your introductory video, talk about yourself, what exactly you do. If you're a student, आप उसके बारे में बोलो. If you have been working, talk about your industry, make video of 1 or 2 minutes. That is more than sufficient. Second, फिर आप आ सकते हो, आप अपनी सिटी के बारे में बता सकते हो. Initially for 3 or 4 videos, that is pretty okay. Then after you can talk about your job. What are the roles and responsibilities, उस पर बात करो. एक्चुअली मुझे अभी पता नहीं है कि आपका एक्सपीरियंस कितने साल का है. अगर आपको 5 से 10 साल का एक्सपीरियंस है, यू कैन मेक वीडियोस अबाउट लीडरशिप, और फिर भी कुछ नहीं मिलता तो मेरे लेक्चर्स तो आपके ईमेल पे आ रहे हैं ना, उनको पढ़ो. ठीक है, व्हाट आई हैव लर्नड, व्हाट आर द की टेक अवेज ऑफ दीज लेक्चर्स, उस पर आप वीडियो बनाना शुरू करो. ओके राहुल, यू हैव 10 years ऑफ एक्सपीरियंस, यू कैन स्पीक लॉट्स ऑफ थिंग्स. आप तो बहुत कुछ चीजें बोल सकते हो. ठीक है, आप अकाउंटिंग के अंदर हो तो आप कुछ भी बोल सकते हो कि अकाउंटिंग के अंदर अगर किसी को अपना करियर बनाना है, व्हाट आर द की स्किल सेट, राइट? अकाउंटिंग प्रोफेशन नीड्स, अकाउंटिंग प्रोफेशन किस स्किल सेट को सबसे ज्यादा डिमांड करता है. ठीक है, व्हाट इज द फ्यूचर ऑफ अकाउंटेंसी. अब तो काफी चीजें आ गई हैं, आप बात कर सकते हो. नए नए एप्लीकेशन आ रहे हैं, नए नए कंपनीज इंट्रोड्यूस हो गई हैं, खाता बुक आ गया है. ठीक है, ये सब चीजें हैं जो आपकी इंडस्ट्री से रिलेटेड है. ठीक है, जितना करोगे, जितना आप इंडस्ट्री के बारे में जानोगे, यू आर क्रिएटिंग योर ओन अथॉरिटी. एंड बिलीव मी, आपके पास 10 years का एक्सपीरियंस है. मेक 25 to 30 वीडियोस अबाउट योर अकाउंटिंग प्रोफेशन ओनली, एक्सक्लूडिंग योर इंट्रोडक्टरी पार्ट. इंट्रोडक्टरी वाला पार्ट को मैं इंक्लूड नहीं कर रहा. 25 से 30 वीडियोस बना लो. यू विल फाइंड अप्रिशिएबल चेंज व्हेन यू स्टार्ट कम्युनिकेटिंग इन फ्रंट ऑफ योर मैनेजर, सीनियर मैनेजर ऑफ योर कलीग, राइट? आपको खुद को डिफरेंस पता चलेगा. ओके, लेट मी टेक अदर क्वेश्चंस. इफ आई मिस्ड एनी क्वेश्चन आप रिपीट कर देना, क्योंकि कुछ क्वेश्चंस ऊपर चले गए होंगे. ठाकुर, आप बोल रहे हैं कि आपका भी पहली बात तो आपने जो ये जॉब एक साल पहले छोड़ा है. ठीक है, इफ यू वांट टू स्टार्ट योर करियर, राइट, ऑल दीज थिंग्स आर वेरी सिंपल, राइट? आप ये मत सोचो कि मेरा कॉन्फिडेंस पूरा, स्ट्रेंथ मेरी खत्म हो चुकी है. लोगों ने तो पता नहीं 3-3, 4-4, 5-5 साल बाद अपने करियर को रिज्यूम किया है. ठीक है, कल का सेशन, इसी को जो नेक्स्ट सेशन होगा सैटरडे का, दैट वुड बी बेस्ड अपॉन योर करियर ब्रेक ओनली, राइट? उसके ऊपर मैं आपको पूरे के पूरे आंसर्स दूंगा कि कैसे आपको आप उस चीज को बचाना है. बचाने का तो वर्ड गलत हो गया. ठीक है, हाउ वुड यू रिज्यूम योर करियर, ये टफ क्वेश्चन आता है इंटरव्यू में, इसीलिए हम लोग सीरीज पूरी की पूरी चलाएंगे. और जो भी आपका इंडस्ट्री का एक्सपीरियंस रहा है, शेयर विद पीपल, राइट? आपने ग्रुप ज्वाइन नहीं किया है तो आप ग्रुप में ज्वाइन करो. आई हैव नो आइडिया कि आपने कोर्स में कब एनरोल किया है. आप एक बार के लिए टीम से बात करना, व्हाट्सएप पे मैं आपको नंबर दे देता हूँ. (9214274343). प्लीज व्हाट्सएप अस. ठीक है, टीम पूरा का पूरा आपको सपोर्ट करेगी. दे विल गिव यू एन आइडिया कि कोर्स का स्ट्रक्चर कैसा है. लेक्चर 1, 2, 3 अभी तक मुझे नहीं पता कि आपको कितने लेक्चर्स मिले हुए हैं. आप एक बार टीम से बात करना, वो आपको पूरा का पूरा डिटेल बताएंगे, और ये भी बताएंगे कि आपके पास लेक्चर कैसे, कौन सा लेक्चर्स आपको देखना है. अगर आप जॉब के लिए बहुत ज्यादा ईगरनेस हो, डोंट थिंक कि मेरे पास स्ट्रेंथ मुझे वापस चाहिए. स्ट्रेंथ आपकी ऑलरेडी है. यू हैव टू वर्क अपॉन योर वीकनेस. ठीक है, वीकनेस के ऊपर वर्क करना है. और वो चीज से पहले ये है कि आप अपनी स्ट्रेंथ लोगों को बताना शुरू करो. गेन सम कॉन्फिडेंस. ओके, स्टार्ट मेकिंग वीडियोस, टॉक अबाउट योर इंडस्ट्री एक्सपीरियंस. ओके, पीपल वुड लव इट. Sir, I want to change my job. I want to go from sales to credit. How could I? Please, Nikha, do one thing, right? आप एक बार के लिए अपना रेज्यूमे ड्रॉप कर देना. ठीक है, so we can have a discussion. ठीक है, आप एक बार
टीम से बात कर लेना, राइट, दे विल फिक्स अप अपॉइंटमेंट और फिर वो सारी की सारी चीजें हम लोग एक बार डिस्कस कर लेंगे. इट इज प्रीटी सिंपल बिकॉज आई हैव नो आइडिया हाउ मेनी ईयर्स ऑफ एक्सपीरियंस यू हैव इनटू द सेल्स. इफ यू आर डूइंग ग्रेट इन सेल्स, आपको बहुत अच्छा एक्सपीरियंस हो गया, सो इट हैज अ वंडरफुल करियर. लेकिन आप अगर क्रेडिट में जाना चाहते हो, थिंग्स आर सिंपल, हो सकता है, कोई बड़ी बात नहीं है. ओके let me give the email address. Let me take other questions. असिस्टेंट प्रोफेसर ठाकुर, बहुत सारे लोग हैं जो टीचिंग प्रोफेशन में हैं यहाँ पे, राइट. नो नीड टू वरी कि आप उस वाले प्रोफेशन में थे, उसके बाद आपने जॉब छोड़ा, ठीक, कोई प्रॉब्लम नहीं है. गुड सर, ये सेशन, हाँ हाँ, एवरीथिंग इज बीइंग रिकॉर्डेड ब्रदर, सारी की सारी चीजें रिकॉर्ड हो रही हैं, राइट. ये पूरा का पूरा सेशन रिकॉर्ड हो रहा है और ये आपके पास अल्टीमेटली होगा क्या ना, मंडे वेंसडे फ्राइडे को तो आपको जो लेक्चर्स कंटिन्यू सीक्वेंस में चल ही रहे हैं, मंडे को आपको लेक्चर 1 2 3 4 ऐसे 60 लेक्चर्स आते जा रहे हैं. ये जो लेक्चर होगा ये आपको कब मिलेगा? ट्यूसडे आफ्टरनून में. इसका पूरा का पूरा एडिटिंग हो जाएगा, रिकॉर्ड होके, और ऑटोमेटिकली इट विल बी एडेड इन योर कोर्स. ओके, ट्यूसडे तक आपको मिलेगा. तो मंडे वेंसडे फ्राइडे तक वैसे लेक्चर्स आएंगे, ट्यूसडे को ये वाला लेक्चर आपको एक एड ऑन अपने आप मिल जाएगा. ओके, ग्रेट. सर आई गॉट माई आंसर्स, लवली. बस अब आपको इनकी प्रैक्टिस करना है, दैट इज गुड, दैट इज ओके, दैट इज ओके, गुड गुड गुड. आज सीख लिया ना आपने स्ट्रेंथ्स और वीकनेसेस के बारे में. जस्ट मेक ऑल दीज थिंग्स. आपकी ये जो स्ट्रेंथ्स लिखी है ना सारी की सारी, स्ट्रेंथ्स आप लोग थोड़ी बहुत चेंज कर सकते हो, ठीक है. आपको लगता है क्योंकि ये तो मेरे दिमाग में आई और ये सब चीजें जो मेरे को उस टाइम पे स्ट्राइक करा, आई रोट ओनली दोज थिंग्स. लेकिन वीकनेसेस में थोड़ा सा आपको सेफ खेलना. जो चीजें मैंने बताई हैं इनको ही आप खेलो. जो मैंने वीकनेस आपको बेसिक वाली बताई है उन्हीं पे आप खेलो, उससे ज्यादा आप कुछ उनमें ना कोई चेंजेस मत करना. सो यू विल प्ले सेफ. दूसरा कोई ऐसा क्वेश्चंस नहीं पूछेगा विच कैन क्वेश्चन योर क्रेडिबिलिटी. तो बेटर ये है कि जो 3 4 बताई है मैंने, फूड हैबिट्स हो गया, इसको बोल के आप आराम से निकल जाओ. बट ऑलवेज मेक अ प्लान टू फिक्स दैम, कि आप कैसे एफर्ट्स डाल रहे हो, व्हाट इज योर प्लान टू फिक्स दैम, ताकि लगेगा कि यू नो योर सिंपली शॉर्टकमिंग्स एंड हाउ यू आर ट्राइंग टू फिक्स दैम. ओके, गुड. Any other questions if you have, do ask me. पुराने लेक्चर्स में अगर किसी को भी कोई डाउट आ रहा है, ठीक है, यू कुड आस्क मी एनी डाउट कि सर वाला लेक्चर था उसके अंदर वाला पॉइंट समझ में नहीं आया, आई विल रिपीट इट कंप्लीटली. यूज टू का तो सेशन पूरा गुड ठाकुर. द मेन थिंग इज दैट योर इम्प्लीमेंटेशन पार्ट, ठीक है दीक्षित. आप जो भी चीजें आप अभी सीख रहे हो, द थिंग्स व्हाट एवर यू हैव लर्न इन टूडे सेशन, यू हैव टू एग्जीक्यूट देम. ओके, और जो पुराने सेशंस आपके पास आते जा रहे हैं उनको आप कंटिन्यू एग्जीक्यूट करना शुरू करो. स्टार्ट मेकिंग वीडियोस. और 1 पर्सन आज यूज टू का तो हम लोगों ने पूरा सेशन ही रिपीट करा था ना सैटरडे को, या फिर उससे पहले वाले सेशन में लिया था, बिकॉज वी गॉट लॉट्स ऑफ क्वेरीज. यूज टू का जो यूज होता है वो किस में होता है? पास्ट की जो हैबिट्स होती हैं जिसमें आप कंटिन्यूसली एक्शंस करते हो, इन दैट केस वी गो विद द यूज टू. इनिशियली अगर आपने सिंपल 1 और 2 टाइम्स किया, इन दैट केस वी गो विद एक्शन सेकंड फॉर्म. दिस इज द फर्स्ट यूजेज. जब हम लोग हैबिचुअल और हैबिट की बात करते हैं, प्रेजेंट में अगर हैबिट है, आई एम यूज टू, आई एम यूज टू, फॉलोड बाय एक्शन आईएनजी लग जाता है. आई एम यूज टू हैविंग टी कॉफी, आई एम यूज टू हैविंग वेबिनार, आई एम यूज टू हैविंग कॉन्वर्सेशन. तो अल्टीमेटली क्या कर रहा हूं? आई एम यूज टू, क्योंकि ये मेरी हैबिट है. इफ यू गो विद द पास्ट, आई वॉज यूज टू हो जाता है. एक चीज और आ जाता है आई यूज टू में. जब भी हम लोग एक्शन की बात करते हैं, वेयर वी आर टॉकिंग अबाउट द रिपीटेटिव एफर्ट्स व्हाट यू वर डूइंग इन द पास्ट बट राइट नाउ यू आर नॉट डूइंग, इन दैट केस यूज टू कैन बी रिप्लेस्ड विद वुड. वो जो यूज टू है वो रिप्लेस किससे हो जाता है? वुड से, प्रोवाइडेड कोई स्टैटिक वर्ब ना हो, जस्ट लाइक लव, फील, ऐसी कोई वर्ड ना हो. तो हम लोग यूज टू को हम रिप्लेस किससे कर सकते हैं? वुड से. दिस इज द मेन समराइज सेशन जो मैंने अभी आपको बताया. स्टिल इफ यू फेस एनी डाउट, आप पुराने लेक्चर्स को एक बार देखना जो लास्ट टू लास्ट आपका सैटरडे सेशन हुआ है. आई रिपीटेड द कंप्लीट कॉन्सेप्ट. स्टिल आपको कोई डाउट आता है, यू आर मोस्ट वेलकम. ओके,
सर है, यस हैज हैव के अंदर तो यही मैंने आपको बताया है ना, देखो यूसेस तो बहुत होते हैं। हैज हैव एक्शन थर्ड फॉर्म वेयर डू वी यूज व्हेनेवर वी आर टॉकिंग अबाउट द एक्सपीरियंस। अब किसी के साथ के जब एक्सपीरियंस की बात आती है या फिर उसका कुछ इम्पैक्ट है, राइट, जस्ट टेक, आई एम जस्ट गिविंग, आई हैव टेकन वाटर, अभी जस्ट मैंने लिया है, इट हैज सम इम्पैक्ट। आई हैव टेकन वाटर, जस्ट आपके सामने, आई हैव जस्ट टेकन वाटर, आई हैव टेकन सिप। अब देखो अभी इसका इम्पैक्ट है, लेकिन मैंने आपको क्या बताया था, इन कॉलोकियल इंग्लिश, आपका मेन डाउट इम्पैक्ट के ऊपर आ रहा है ना, वही मैं आपको क्लियर कर रहा हूँ। कॉलोकियल इंग्लिश में ग्रामेटिकली यू हैव टू राइट आई हैव टेकन सिप ऑफ वाटर, सब कुछ आप लिख रहे हो, लेकिन जब आप बोलने पे बोलोगे, राइट, आप आई टुक वाटर भी बोल सकते हो। बोलने वाली इंग्लिश अलग हो जाती है, क्योंकि उसके अंदर जो ग्रामर में हम लोगों को बहुत लिबर्टी मिलती है, राइट। आई टुक वाटर बोलोगे चाहे आप अभी लिया है, ठीक है, विद इन अ फ्रैक्शन ऑफ सेकेंड, आई टुक वाटर, ग्रामेटिकली ये चीज राइटिंग के अंदर इम्पैक्ट और पूरी वाली बात आती है, बट स्पीकिंग में यू कैन गो फॉर इट। दिस इज द मेजर कंफ्यूजन व्हाट यू मस्ट हैव हैड। इफ इट इज क्लियर प्लीज टाइप यस। My doubt got clear. Thanks for the session. Good, good, Akash. Okay, please implement all these things what we have discussed so far. Yes. Good night, good night, good night. Any other query if you have, please ask me. सैटरडे को यही होगा पूरा का पूरा सेशन ना। सैटरडे को हम लोग इस सीरीज का हम लोग नेक्स्ट पार्ट करेंगे, जिसमें हम लोग दूसरे क्वेश्चंस कवर करेंगे। ओके, कुड वाला पार्ट हम लोगों ने कवर किया है ना। दैट इज द पार्ट व्हेन could have action third form में मैंने आपको क्या बताया है कि whenever where do we use could have action third form, when there was a possibility, when there was an our ability to perform that particular task but we didn't do, in that case we use could have plus action third form. Okay, just take example कि अभी हम लोग बात करते हैं, let me take an example, अभी का हम लोग एग्जाम्पल लेते हैं। सपोज कीजिए you went for the interview, आप इंटरव्यू के लिए गए और यू हैड 5 स्टेंस टू स्पीक, 5 स्टेंस आपके पास बोलने को थी, ठीक है, लेकिन आपने बोली कितनी, यू स्पोक ओनली 2 स्टेंस। अब आपको तो 5 पता थी ना, बट आपने बोली यू हैड एबिलिटी, यस यू हैड, डिड यू स्पीक, नो, बट यू कुड हैव स्पोकन 5 स्टेंस। बहुत बेसिक एग्जाम्पल लिया है मैंने पास्ट में, बिकॉज अब आप जाके तो ना वापस इंटरव्यू रूम में जाके बोलोगे, बट एट दैट मोमेंट ऑफ टाइम यू कुड हैव स्पोकन, राइट, 5 स्टेंस और वीकनेसेस जो भी आपको बोलनी है। तो वो जो चीजें होती है वहां पे पास्ट में यू हैड एन एबिलिटी टू परफॉर्म दैट पर्टिकुलर टास्क बट यू डिडंट डू, इन दैट केस वी ऑलवेज गो विद कुड हैव प्लस एक्शन थर्ड फॉर्म। सबकॉन्शियस माइंड में बैठा लो, ठीक है, व्हाई आई एम पुटिंग इन सो मच एफर्ट्स, रीजन बीइंग दीज थिंग्स ऑलवेज मेक्स यू इन ट्रबल, बहुत दिक्कत करती हैं ये चीजें, पीपल मेक मिस्टेक्स ऑफन, राइट, कितने भी आप लोग चीजों को कर लो, बट इफ यू डोंट प्रैक्टिस, इफ यू डोंट take all these things in a real life example, how much time did I take? Only fraction of second I thought and I just gave example on the same content what we had discussed आज के बारे में। तो ये कोई रॉकेट साइंस नहीं है, या फिर मैं कोई बहुत बड़ा इंटेलिजेंट आदमी का कोई चीज प्रूफ नहीं कर रहा, ये लोग आप भी कर सकते हो। वॉट एवर यू हैव लर्न ऑन ऑल दीज लेक्चर्स, क्रिएट हाइपोथेटिकल सिचुएशन, मेक सम सेंटेंसेस, योर जॉब इज डन। द सेम व्हाट पीपल जनरली डू, आप जब आप ग्रुप में देखते हो हाउ आर स्टूडेंट्स आर मेकिंग वीडियोस, व्हाट दे डू, दे लर्न फ्रॉम द लेक्चर, ठीक है, कोई ना कोई सिचुएशन क्रिएट करते हैं, स्पीक द सेंटेंस, बस यही चीजें आपको करनी है। कोई आपको ट्रांसलेशन, कोई टेंस की जरूरत नहीं पड़ेगी। हैव यू डिस्कस एनी टेंस कि वो सकता था, सकती थी, ये सब कुछ डिस्कस किया? नो, आई गिव वन एग्जांपल, आई गिव यू द कंप्लीट सिंटैक्स, वेयर डू वी यूज कुड हैव प्लस एक्शन थर्ड फॉर्म। पूरा का पूरा लेक्चर है यार, जो मैंने अभी आपको चीज मुश्किल से 2 या 3 मिनट में बता दिया ना, ठीक है। आई टुक ऑलमोस्ट 1, 2 और 3 लेक्चर्स, पूरा 1.5, 2, 2.5 घंटे के लेक्चर्स पड़े हुए, कोई चांस ही नहीं है कि आपको दिक्कत आए। ओके, स्टिल इफ यू फेस एनी डाउट, ठीक है, सैटरडे को आओ ना यार, पूरा का पूरा लेक्चर रिपीट कर दूंगा, दैट इज माय प्रॉमिस, बट द वन कमिटमेंट फ्रॉम आई एम सीकिंग फ्रॉम योर एंड, राइट, आई नीड एग्जीक्यूशन पार्ट। लॉट्स ऑफ पीपल हु हैव एनरोल्ड इन दिस कोर्स बट दे आर नॉट मेकिंग वीडियोस, राइट, दीज थिंग्स वोंट गिव यू रिजल्ट्स, ठीक है, बिलीव मी, आई एम नॉट हियर टू एनरोल ऑल ऑफ यू जब तक आप लोग रिजल्ट्स ही नहीं दोगे अल्टीमेटली। फिर जब रिजल्ट्स नहीं आते तो आप लोगों को बुरा लगेगा, उससे ज्यादा बुरा मुझे लगेगा। कहीं ना कहीं आई फेल्ट कि यार
अभी भी जब हम लोग देखते हैं कि लॉट्स ऑफ पीपल एनरोल्ड, ठीक है, उसके बाद लेक्चर्स भी आते हैं, आप लोग लेक्चर्स सुनते भी हो, तो आप फिर लेकिन वीडियोस नहीं बनाते, इन दैट केस थिंग्स आर हर्टिंग, क्योंकि मुझे आप लोगों के रिजल्ट चाहिए। अल्टीमेटली जब आप लोग अपने वीडियोस बनाते हो, डू यू मेक मिस्टेक्स? यस यू डू। यू मेक ग्रामेटिकल मिस्टेक? यस यू डू। यू मेक प्रोनाउंसिएशन मिस्टेक्स? यस, ऑल दीज थिंग्स हैपन, बट सही की शुरुआत गलत से ही होगी। इफ यू हैवंट स्पोकन एंड यू आर थिंकिंग दैट कि समथिंग मैजिक विल हैपन, इट वोंट। यू हैव टू पुट इन एफर्ट्स, यू हैव टू मेक इम्परफेक्ट एक्शंस। आई एम नॉट सेइंग कि आप बहुत अच्छा क्लासिक वीडियो बनाओ, डोंट मेक एनी ग्रामेटिकल मिस्टेक, यू मेक, एंड यू आर बाउंड टू मेक मिस्टेक्स, वो तो 100% होंगी, लेकिन उस मिस्टेक को रिपीट नहीं करना। सर हाउ डू आई कम टू नो? जब आप लेक्चर सुनोगे, पुराने लेक्चर्स आपके पास कंटिन्यू आते जा रहे हैं, उन सेशन के बाद आपका दिमाग बिल्कुल ओपन हो जाएगा। एक एक चीज को बिल्कुल तोड़ तोड़ के हम लोगों ने बताया कि कैसे कैसे सेंटेंसेस बनाने हैं, कहाँ कहाँ पे गलती होगी। स्टिल इफ यू मेक मिस्टेक्स, आई एम ऑलवेज देयर टू असिस्ट यू, आई एम ऑलवेज देयर टू हेल्प यू। सैटरडे को जब आपका ऑडिट होगा, बट शो मी रिजल्ट्स, आप दिखाओ तो यार आप लोग ये सब इतनी चीजें कर रहे हो। क्यों मैं आप लोगों को बार बार बोल रहा हूँ, यू आर नॉट हियर टू लर्न स्पोकन इंग्लिश, बिलीव मी। आप लोग इस कोर्स में इंग्लिश सीखने के लिए नहीं आए हो। इंग्लिश तो बहुत छोटा पार्ट है, राइट, एंड यू वोंट नीड 3 और 4 मंथ से ज्यादा आपको नहीं लगेगा। 3 से 4 मंथ में आपका पूरे की पूरी चीजें कवर हो जाएगी, बिकॉज यू आर हियर टू एक्सेल इन योर लाइफ। इंग्लिश इज नॉट योर एम, लाइफ का एम नहीं है। एम क्या है? वॉट एवर जॉब, वॉट एवर बिजनेस यू आर परफॉर्मिंग, यू हैव टू एक्सेल इन ऑल दीज थिंग्स, एंड इंग्लिश सपोर्ट्स इट। कंप्लीट दैट इंग्लिश वाला पार्ट, come into the public speaking, start making videos, right, talk to people, share your ideas, thoughts, stories. बस आप जितना वो शेयर करोगे, these things give you lots of opportunity, whether you are doing job, business, कुछ भी आप कर रहे हो, whether if you are homemaker, right, you create the community around you if you are good in speaking. बस वो चीजें हैं। अब आप उसमें सोच रहे हो कि यार पहले मैं 10 लेक्चर्स कर लेता हूँ या कर लेती हूँ, देन आफ्टर आई विल स्टार्ट मेकिंग वीडियोस, ऐसा कभी नहीं होगा, बिलीव मी। So what exactly you are doing? You are betraying yourself. You are cheating upon yourself. कि एक you are into this that type of hallucination कि हाँ यार इतना करने के बाद I will improve, right? I don't have any particular injection which I can inject you कि हाँ यार ये वाला content आ गया, lecture 1 का एक injection लगा लो, lecture 2 का injection लगा लो। You have to take imperfect actions. You have to take initiative. You have to make lots of mistakes. जितनी आप mistakes करोगे ना, उतनी ही चीजें आपकी improve होती जाएंगी, क्योंकि आप खुद सुनोगे। मैंने आपको बार बार यही बोला है, द वीडियो यू हैव मेड, द वीडियो यू हैव अपलोडेड, राइट, बिफोर अपलोडिंग डोंट लिसन इट। अगर आपने अपलोड से पहले सुन लिया तब तो आप उसको अपलोड ही नहीं करोगे। वंस यू अपलोड दैट पर्टिकुलर वीडियो इन अ फेसबुक ग्रुप, आफ्टर अपलोडिंग लिसन इट। ओके, दीज आर द प्लेसेस। अच्छा यार यहाँ पे मेरी गलती हो गई, राइट, आई शुड हैव यूज्ड आईएनजी, आई शुड हैव यूज्ड एक्शन थर्ड फॉर्म, आई शुड हैव यूज्ड हैड, विल, शैल। क्या नहीं है जो हम लोगों ने इसमें कवर नहीं करा? मैं बार बार आपको इसलिए बोल रहा हूँ बिकॉज आई एम एनकरेजिंग यू, राइट, आई एम ऑलवेज स्टैंडिंग बाय यू कि आपके पास जितना कंटेंट है, राइट, इट इज सुपर रिच कंटेंट, nothing is left in the course, but one thing is missing, that is your execution part. If you have enrolled in this course today only, yesterday, day before yesterday only, that is completely fine. If you attended one lecture, एक सिंगल लेक्चर किया है, उसके बाद आप अपना वीडियो शूट करना शुरू करो, एटलीस्ट स्पीक। कोर्स ये वाला पार्ट स्पीकिंग, राइटिंग सब कुछ सिखाएगा, लेकिन राइटिंग वाला पार्ट मैं आपके घर जाके या आपके ऑफिस पे जाके नहीं बोल सकता कि आप कैसे कर रहे हो। जस्ट एक एग्जांपल ऑफ समीर, right, he has been consistent in this course, right, whenever I ask the vocabulary, he is the first person who simply types, right, पूरी चीजें लगता है, right, or whatever he has been learning, all the tough vocabulary सारी की सारी, he uses lots of sentences, but the main thing what he is missing, this is one of the best part, it is his strength, स्ट्रेंथ वाला पार्ट आ गया। अब हम लोग बात करते हैं व्हाट आर द एरियाज ऑफ इंप्रूवमेंट, राइट, ही इज नॉट मेकिंग वीडियोस। राइटिंग स्किल्स बहुत अच्छी हो रही है, राइट, कंटिन्यू यूज भी कर रहे होंगे, बट स्पीकिंग वाला पार्ट मिस है ना यार। देयर आर सो मेनी पीपल हु हैव एनरोल्ड इन दिस कोर्स, दे आर गुड इन राइटिंग पार्ट, बट दे हैव एनरोल्ड इन दिस कोर्स टू स्पीक अप। अब वो चीज है, जब आपके पास इतना चांस है, इफ यू आर गुड इन राइटिंग वाला पार्ट में सब कुछ बढ़िया चल रहा है, तो व्हाई डोंट यू स्टार्ट मेकिंग वीडियोस? Sameer, if you are active right now, अगर आप अभी भी हो, right, I request you to please make videos. I request you, I use the word request. I'm not advising you, right, or I'm not ordering you, because I need results from your end. And all of you, the people who have been listening and watching to me, I request all of you. Reason being, these things bring results. ऐसा नहीं है कि आप लेक्चर्स करते जाओ, because otherwise all these things will become intellectual motivation. बस पूरे का पूरा चीज वाला रह जाएगा। सो बेटर यही है, आप एक्साइटमेंट में, अब जैसे राहुल मोटिवेटेड लेक्चर, राहुल मोटिवेशन नहीं चाहिए ब्रदर, राइट, आपको इंस्पायर होना है। मोटिवेशन तो सब्जेक्टिव है,
ऑफिस का एक मेल आएगा, आप डिप्रेस हो जाओगे, कुछ भी होगा. सो बेटर ये है, यू हैव टू बी कंसिस्टेंट. Okay, great. So this brings me to end of this session. Still, if you have any query, any doubt, you can email me. I'm always there to assist you, help you, support you, encourage you, motivate you, inspire you. But the one thing which is missing, that is your execution वाला part. Write down as many queries if you have. आप lectures देखो, notes बना लो सारे के सारे, Saturday को पीछे पड़ जाओ. Right, I have to ask this question, this question, this question. Doesn't matter, irrespective of any time. It's 11. ठीक है, चाहे 12 बज जाए, चाहे 1 बज जाए, चाहे 2 बज जाए, इतना होगा ही नहीं. सारे डाउट्स आपके क्लियर हो जाएंगे. बट आस्क मी, बिकॉज आई नीड रिजल्ट फ्रॉम ऑल ऑफ यू. ओके, ग्रेट. सो वी आर एंडिंग टुडे सेशन. गुड नाइट, गुड नाइट, गुड नाइट. सो आई होप यू मस्ट हैव एंजॉयड, यू मस्ट हैव लर्न सो मेनी थिंग्स. ग्रेट, ग्रेट, ग्रेट. गुड नाइट, गुड नाइट, गुड नाइट. हाँ हाँ, यही वाला पूरा, ये जो लेक्चर है ना, ये ट्यूसडे को आपको मिल जाएगा. मंडे, वेडनेसडे, फ्राइडे को तो आपका जो रिकॉर्डेड सेशंस का जो आपका सीक्वेंस चला आ रहा है वो तो आपको मिलता ही है. ठीक है, ये वाला सेशन आपको ट्यूसडे को मिलेगा बाय द आफ्टरनून 2 और 2:33 PM तक आपके पास आ जाएगा. ओके, ग्रेट. गीता, you start making videos. Initially you started, what happened? Any query, any doubt if you have, कुछ भी आपको प्रॉब्लम आता है, please talk to our team. Right, you already have our number. जिन जिन लोगों को कोई भी प्रॉब्लम आती है, if you are facing any hesitation, if you are feeling shy, कोई भी आपको दिक्कत आती है, do ask us. Right, don't quit. आप लोग जितना भी कर रहे हो, ऐसा नहीं कि बस 1-2 वीडियोस बना लिए, बिकॉज ऑल दीज थिंग्स आर पेइंग यू एफर्ट्स. जो भी आप चीजें अभी कर रहे हो, ये सब चीजें आप लोगों को बहुत एंड में बहुत बड़ा प्राइस पे करेंगी. एंड दिस इज माई प्रॉमिस. Go to the previous videos of lots of students. How did they get benefited? You are not the exception. Okay, great. Nikat, excellent. I really appreciate you made first video. Right, good. Please keep it up. और आप एक बार के रेज्यूमे शेयर कर देना टीम से और टॉक टू देम. राइट, दे विल फिक्स अप योर स्केड्यूल. No worries. Great. So we are ending today's session. Please execute all these things. Any query, please email, talk to our team. Okay, great. Good night, good night. Wish you a great weekend. Tomorrow it's Sunday, you have plenty of time. Please start making videos. Bye bye.